it's a quick revision. Given I'll try to do the numerical given the time that is available. So now why is this lagging? There are too many applications open. Okay, so good evening, folks. Welcome to this particular lecture. What we are going to discuss today is credit markets, chapter number 14. Now, I'm going to give you a very brief summary of the first part. Why? Because in the morning today, I had explained the version of the reading in detail in the first 2 hours. So if you have attended that, very good. If you have not, unfortunately that lecture could not be processed because of some error on in the recording part, and then accidentally I deleted the raw file. So we're going to discuss the first 4.1 till 4.5. we are going to discuss very quickly, maybe in a span of 40 minutes, and then we are going to spend some time on 14.5, and then 14.4, and then 14.5 onwards. It's a couple of pages, that then you can do it on your own, and just quickly go through that. So let me not waste any more time. Let me just switch off my camera, and then I will share my screen. Hold on. And the screen, folks. Screen 1, enter screen 1. All right. Class 2, is it visible for you? Yeah. Now class 1, folks. Sorry, class 1 it was visible. No. Class 2 I'm just doing it. Hold on. Class 1 it is visible. Sure. Okay, it should be visible to class 2 as well. All right. And mind you, my system is going to be extremely heavy because I'm running 2 Google Meets with 100% capacity. So bear with me if there is a lag. Okay. Now let me give you a brief summary of the entire chapter. ठीक है, मैंने बोला था ये मैं already पढ़ा चुका हूँ. So I'm going to give you a very brief summary. Now the introduction part, which talks about 2 things. First, credit and insurance. Now, both credit market and the insurance market suffer from a similar kind of a problem, and both these markets don't function properly. So you will find that because of multiple reasons both these markets fail. And as I told you in the morning, that we are a developing country, and in every developing country you can think in rural areas these two are very important, especially credit market, because if you want to do any business, say what is the primary source of earning in the rural area? 70% of the people in the rural area are basically directly or indirectly related to farming, and when it comes to farming you have to take a loan. That means credit markets is a way of life in any of the markets. Now any rural area, any developing economy. But as in case with credit and with case of insurance, these markets fail. Why? Because there is a lot of localized information that you need, which is not available with a lot of these formal institutions. तो एक होता है कि formal institutions, yes I am recording it, don't worry. फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस जो है वो काम क्यों नहीं करते? यू वोंट सी बैंक सो मेनी बैंक्स देयर, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर. यू विल सी लाइक फ्रॉम 1950 से लेके 1990s तक देयर वर नॉट मच बैंक्स. इनफैक्ट बैंक्स वर इंट्रोड्यूस बिकॉज ऑफ नेशनलाइजेशन. सो 1967 एंड 1980 में जब नेशनलाइजेशन करी 1969 और 1980 में, तो उसकी वजह से बैंक्स रूरल एरियाज में पहुंचे. सो that localized specialization is not there, and there are 2 areas there because of which both the credit market and the insurance market fail. Especially the credit market is basically, first, that it is very difficult to monitor what is being done with the loan. So remember Vijay Mallya took the loan for his businesses, for his airline industry, but he was taking that loan and basically using that loan for F1 races, for having those calendar shootouts that he was doing. So basically that is called diversion of loan, and that is one problem in terms of monitoring. You cannot monitor what is the end purpose through which you are taking. Suppose I ask all of you on the 6th when I meet you that देखो मैंने बहुत बढ़िया पढ़ा है, मुझे 5,000 रुपये का लोन दे दो. Now if you give me a loan and the next day I come to you and you come for my class, and then I'm wearing an iWatch and I'm having an iPhone,
तो यू विल से दैट यू कैन ईजिली से दैट सर ने पैसा जो है सीधा कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन के लिए यूज़ कर लिया एंड रादर देन इन्वेस्टिंग इन हिज बिजनेस. That is the problem in terms of monitoring. The second problem is strategic default. So there is an involuntary default and then you have an voluntary strategic default, which in Indian terms we call this as willful defaulter. जिसके पास पैसा है, जिसके पास ability है to pay, but still he is defaulting, he or she is defaulting. That is called a willful defaulter. And but simply because of moral hazard that person is not paying, and it's because of the fact that they know that the law will not catch up to them. So therefore they and especially in developing countries the legal mechanism is extremely slow. I gave you the example, आज आप कोई crime कर दो, आपकी 3 पीढ़ियों बाद आपको उसका सज़ा मिलेगी. So Indian judiciary system and in general the judicial system is extremely slow, and that is why people do not because there is no repercussions of the action. There can be willful default. Now what are the sources of credit? So this is all and because informal credit is very important because you are able to monitor and you are able to enforce. सपोज मॉनिटर कैसे, आप अगर पड़ोसी को लोन दे रहे हो, अगर रूरल एरियाज में आप अपने कास्ट वाले को दे रहे हो, तो यू नो दैट व्हाट इज़ द पर्पस. वो सुबह से लेके शाम तक काम कर रहा है, या फिर वो उसको गैम्बल कर रहा है, या फिर वो शराब पे उड़ा रहा है उस पैसे को. सो यू नो यू आर एबल टू मॉनिटर इन एन इनफॉर्मल सेटिंग बिकॉज आई एम गिविंग लोन टू माई neighbor. Similarly, you can also enforce that. Why? Because there is the concept called panchayat. तो पंचायत में आप इन्फोर्स करा सकते हो, आप सोशली ऑट्रासाइज कर सकते हो उस इंसान को. यू कैन से आप लोगों में बात फैला सकते हो कि दिस पर्सन इज नॉट पेइंग बैक द लोन, देयरफॉर नो वन एल्स विल पे यू द मनी. सो देयर इज दैट enforceability that also can be developed through this. Then comes the demand for credit. Now demand for credit is for 3 sources. Basically 3 sources के लिए demand कराया जाता है credit. First is capital. Basically capital के फॉर्म में अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो it could be tractors, it could be say major irrigation, और it could be say मुझे hydroponics लगाना है तो मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए, मुझे drones चाहिए. All of this could be example of capital needs, credit that you need for capital. So think of it as fixed investment that you need. Then maybe even buying a fresh piece of land, that is also a capital investment. Then the other thing is working capital. Now working capital could be something like मुझे seeds के लिए पैसा चाहिए, fertilizers के लिए पैसा चाहिए, day to day activities के लिए पैसा चाहिए, sales के लिए पैसा चाहिए, warehousing के लिए पैसा चाहिए. All of that is working capital. And then you have consumption. Now in the rural areas you will see that there are certain incidents through which जो आपको consumption loan की तरफ ले जाएगा. For example marriage, then you have death, and then you have a medical emergency. Apart from that, any natural calamity. These are 3-4 things because of which every rural household basically slips into poverty. For example, a COVID crisis, जिसकी वजह से इंडिया में around 35 million लोग possibly were pushed below the poverty line. So these are especially the working capital and the consumption credit are the 2 areas जहाँ पर forthcoming loans बड़े आसानी से मिल भी जाते हैं, और even जो creditors हैं वो भी इन्हीं पर्पस के लिए लोन देना चाहते हैं, and that we will understand why they are interested in giving loans for this particular purpose. Then the next is, so these are the 3 kinds. Then the next is who provides the rural credit. Now rural credit can be provided by 2 sources. One is institutional factors, institutional sources. For example banks हो गया, या local banks हो गए, या commercial banks हो गए, credit bureaus हो गए, all of them can give it. But at times what happens is that with them they do not know the activity, they do not personally know the activity and the characteristics of the borrower, and therefore their ability to basically monitor these persons is going to be very difficult. And the other thing is the coincidence of wants, the coincidence of the bank and the borrower. Now here is an example where it says that आपने 1 लाख रुपए किसी को दिए एंड आपने 10% रिटर्न पे दिया. 10% रिटर्न पे मतलब 10% इंटरेस्ट पे दिया, तो बैंक को 1 साल के बाद 1,10,000 रुपीज़ मिल जाएंगे यहाँ पर. सो आपने आपने 1 लाख रुपीज़ दिया, आपको 1,10,000 रुपीज़ मिल जाएंगे. नाउ दिस इंडिविजुअल जिसको आपने पैसा दिया, इसके पास 2 ऑप्शन है, एक 15% पे लगाने का पैसा और दूसरा 20% पे. दैट मीन्स एक केस में उसको 1,15,000 मिल जाएगा, दूसरे केस में 1,20,000 मिल जाएगा, एंड दोनों 100% प्रोबेबिलिटी के साथ मिलेंगे. सो इस केस में द बैंक वुड वांट द इंडिविजुअल टू इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट, एंड द इंडिविजुअल विल ऑल्सो वांट टू इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट.
So in this case, there is perfect coincidence of interest between what the bank wants and what the individual also wants. But that is not sure at times. At times you are not able to ascertain how the individual is going to invest. Now there are two cases. Suppose ये जो individual है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि मेरे पास दो प्रोजेक्ट हैं, एक पे मुझे 1,15,000 रुपीज़ 100% मिल रहे हैं और दूसरे में मुझे 2,30,000 मिल रहे हैं बट 50% चांस से मिल रहे हैं. सपोज ये IPL पे सट्टा खेलता है, ये कहता है IPL के फाइनल पे KKR जीतेगी कि दूसरी कौन सी थी, सनराइजर्स, हैदराबाद सनराइजर्स. सो ये किस पे, ये इस चीज़ के ऊपर 50% चांस से ये पैसे लगा रहा है. जीत गया तो 2,30,000 और हार गया तो 0 रुपीज़ मिलेंगे. नाउ अब अगर मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन देखूँ मैं 2,30,000 विद 50%, तो वो भी तो 1,15,000 ही आ गई. 50% चांस से आपको मिल जाएगा ये और 50% चांस से मिल गया ये, तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन तो ये इसी की है. बट व्हाट वुड दी बैंक वांट? अगर ये वाला केस हो गया, इसने हैदराबाद पे लगा दिया होता तो 0 मिलता है इसे और ये बैंक को भी 0 दे पाता. सो इन दिस केस द बैंक वुड वांट हिम टू इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट रादर देन इन्वेस्ट इन IPL की बैटिंग. बट हो सकता है इंडिविजुअल इज़ अ रिस्क टेकिंग इंडिविजुअल एंड हो सकता है वो अपनी लक रखता हो, उंगलियों में बहुत सारे वो पहनता हो और वो उसने महादेव का नाम लिया और लगा दिया यहाँ पर. तो यू रियली डू नॉट नो दैट what kind of investment, because this is, you do not have the control on that कि what is the person doing with the money at the end. So therefore for him, in fact, if you see, for him it is borrower का अगर आप रिटर्न देखोगे, so borrower would pay, in this case he would opt for a risky project rather than a safe project. So in this case this is so he will try to divert the loan money and the bank will be very unhappy with this. So because of these tendencies, banks ask for collateral, because you really do not know that who will pay you back and who will not pay you back, what is the end product of the entire loan that we are going. But a problem is कि do people have this thing collateral or not. Now collateral के साथ issue ये है that collateral जो है हो सकता है कि वो या तो बैंक के लिए useless हो. For example, the farmer is giving you a piece of land. अब वो पीस ऑफ लैंड दिया, वो बैंक जो है अगर इसने पैसे वापस नहीं दिए तो बैंक को जाके ये लैंड लेनी है. और मान लो ये लैंड किसी रूरल एरियाज़ में है जहाँ पर और साथ में गुंडे भी रहते हैं और ये बंदा भी गुंडा है, तो क्या करेगा, ये इनके बैंक वाले एम्प्लॉय को मार पीट के वापस भेज देगा. तो ये तो बैंक को पता है कि ये तो मुझे वैसे मिलने नहीं है इस तरीके से. तो और दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा कि एक लैंडलेस लेबर जिसने वो करा है, तो उसके पास सिर्फ क्या है, उसके पास तो सिर्फ अपनी लेबर है पे करने के लिए. तो बैंक इसको क्या बोलेगा, बैंक बोलेगा कि मेरा PN बन जाओ फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स या नेक्स्ट 5 ईयर्स, तभी जाके अपना रिटर्न करना. तो वो भी बैंक के लिए फीजिबल नहीं है. सो फॉर बैंक्स इट बिकम्स एन इनफीजिबल ऑप्शन to have collateral, certain kinds of collateral which is useless for them. But as compared to this, the informal lenders are more informed, because they would take all kinds of collateral. They will take small piece of land as collateral as well and they will take labor as collateral as well. वो दोनों को collateral लेने के लिए रेडी हो जाएंगे क्योंकि वो उस एरिया में रहते हैं तो उसको वैल्यू पता है. आई गिव यू द एग्जाम्पल इन द मॉर्निंग. सपोज ये एक मेन रोड है, हाईवे है, ठीक है, एक पीस ऑफ लैंड है यहाँ पर, ये वाली जो एक स्मॉल फार्मर की है, और बिग फार्मर का यहाँ पर बहुत बड़ा लैंड है बट उसके पास एक्सेस नहीं है. नाउ दिस बिग फार्मर will try to give loan to this small farmer, and in fact what he will try to do is he will try to negotiate such terms for this particular loan so that this small farmer defaults and is able to capture this land as well. So at times in the rural areas, informal जो lenders हैं, they may be willing to take any kind of collateral because they know the value of it and they know that they can enforce that collateral as well. The interest or what we say is the securitization of that asset as well. And the other thing is that they can also ask for
they can also ask for labor. They will also accept labor as collateral. They can say that मेरी land में आके अगले 4 महीने आपको काम करना है free में. So that is one thing. The other thing is that they are not, if the banks are not able to enforce the borrowers because they cannot reach them, but the landlord, shopkeeper, trader can do a better job because they are able to see the activity on a day-to-day basis of how the borrower is working, and that's why you will see a concept of segmentation. You will see a concept of सेगमेंटेशन इन दी क्रेडिट मार्केट्स, जब मैं आपको क्रेडिट मार्केट्स के फीचर्स बताऊंगा. और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि यू शुड नो दी बोरोवर, और आप अपने नोन में ही पैसे लोगों को देते हो, अननोन में किसी को पैसे नहीं देते हो. ठीक है. सो दीज आर थ्री थिंग्स विद द इंस्टीट्यूशनल एंड इनफॉर्मल with the informal sector, that they are willing to take any collateral. There is segmentation in the market. What segmentation means, that there is a buyers, the borrower and the creditor, they have some kind of a relationship, some kind of production relationship, which is very important. And then there is some kind of specialization as well. Then the next is some characteristics of the rural credit market. Now we are going to talk about 6 characteristics of the rural credit market. The first characteristics is informational constraint. As I told you that you really do not know the end use of the loan. This is a major constraint in the market. And the other thing is, you also do not know the repayment decisions or actions of the borrower. So the needs of the borrower, what are the actions of the borrower, what is the needs of the borrower, all of that you do not know, which becomes a problem. The second issue in the credit market is segmentation. Segmentation is that credit markets are very personalized. It takes time to build it up. That's why you will see that आप एक किसी नॉन अपनी कास्ट वाले कोई लोन पे दोगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यू विल सी जो इनफॉर्मल लेंडिंग वाले होते हैं, इनफॉर्मल लेंडिंग वाले आपसे बहुत तरीके के सवाल पूछेंगे कि अच्छा आपकी कास्ट कौन सी है, कहाँ रहते हो, और वो ये भी देखेंगे कि आप अपने गांव के हो या नहीं हो. सो ऑल ऑफ दैट टेक्स टाइम. और स्पेशली अगर आपके सेम प्रोडक्शन लाइन से है कि आप किसी चीज़ का काम करते हो, तो आप वही आगे सिमिलर तरीके के काम में है तो वो आपको क्रेडिट दे देगा. फॉर एग्जांपल अगर आपके पेरेंट्स कोई बिजनेस में है तो आपको पता होगा कि अगर कोई जो सामान का रॉ मटेरियल या फिनिश प्रोडक्ट का काम है, उसका कई बार 6 महीने क्रेडिट चलता है. इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू नो इट्स अ चेन, इट्स अ सेगमेंटेड चेन. सो दैट अगेन इज अ प्रॉब्लम. तो रूरल मनी लेंडर हैज़ अ फिक्स क्लाइंटेल. दे विल नॉट गिव लोन without knowing the person in general. The third is interlinkage. Interlinkage basically means that the credit market transactions are all interlinked. They are complementary production relationship. For example, tenant और landlord. और landlord जो है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें ये पूरे उसका मालिक है, उसने छोटी सी एक जगह दे रखी है. तो अगर इसने इससे पैसे लिए हैं और ये वापस नहीं कर रहा, तो इसको बाहर निकाल सकता है अपने घर से. सो टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड का एक प्रोडक्शन रिलेशनशिप हो गया, ठीक है. सो एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रोडक्शन रिलेशनशिप यू कैन इजीली एक्सटेंड द क्रेडिट. सो यू नो द पर्सन. सो इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ सेगमेंटेशन. देन यू हैव अनदर एग्जांपल ऑफ फार्मर एंड ट्रेडर. फार्मर एंड ट्रेडर कैसे है? ट्रेडर जो है वो फार्मर को पैसे दे सकता है फॉर इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल, एंड फार्मर जो है वो वापस ट्रेडर को ही बेचेगा अपना सामान. सो व्हाट ट्रेडर कैन डू इज, जैसे ही इसका हार्वेस्ट हुआ, अपना ट्रैक्टर लेके यहाँ पहुँच जाएगा और कह देगा कि ये सारा का सारा सामान मेरा है, बिकॉज आई हैव गिवन यू द लोन. आई हैव द फर्स्ट क्लेम ओवर the produce that you have produced. So that is the third feature of the markets. Then the fourth feature of the market is interest rate variation. Now interest rate variation basically means that there can be very high or very high interest rates, and we are going to explain this in detail. Why in the informal sector there's going to be very high interest rates. They're going to be very high interest rates in the informal sector, and this reading in the next section explains you why interest rate in the informal sector will be greater than formal sector, and especially why because of default it's going to be high. तो दिस इज़ इंटरेस्ट रेट वेरिएशन. तो इंटरेस्ट रेट जो होता है वो काफ़ी वेरी कर सकता है. फॉर एग्जांपल मैंने आपको सुबह की क्लास में ही बताया था कि अगर आप होम लोन लोगे तो आपको 8 to 9% के अराउंड मिलेगा. कार लोन में लोगे तो अराउंड 12 to 13% पर एनम मिलेगा. क्रेडिट कार्ड का जो लोन होता है वो अराउंड 40% पर एनम होता है, और इनफॉर्मल सेक्टर का जो लोन होता है वो कई बार 10% पर मंथ होता है. इट कैन रीच टू 120 to 150% पर एनम. ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है ज़्यादा भी हो, इससे भी ज़्यादा. सो
these are different kinds of interest rate, but at times 0% interest rate भी होता है. Now although exam बहुत पास में है, but I want to ask you, why can this be 0%? Why can interest rate be 0%? In what condition? Any idea? Class 1 or class 2? कहाँ गई हमारी class 2? Discounted price? Yes, Muskan, you are right. For example, Islam. In Islam, what happens is, because of Sharia law, in Sharia law you cannot charge interest. Interest income is called haram in Sharia law. So therefore there are different devices, immoral. So therefore the lender and the buyer relationship is in a different manner. For example, in this case, if I give a loan टू से, मैं अपने ट्रेडर हूँ और ये फार्मर, मैं उसको लोन दे रहा हूँ, तो मैं उसको इंटरेस्ट नहीं चार्ज करूँगा. व्हाट आई विल डू इज, आई विल से दैट गिव दिस आउटपुट टू मी एट अ डिस्काउंटेड प्राइस विच इन फॉर्म विल बी एन इंटरेस्ट रेट. सो दैट इज या फिर अगर मैं अपने टेनेंट से, अगर टेनेंट है मेरे पास, तो मैं उसको कहूँगा कि भाई तू इंटरेस्ट मत दे, तू मेरे लिए 5 साल काम कर या 4 साल काम कर मेरे फील्ड के ऊपर. सो दैट दे आर डिफरेंट डिवाइसेस थ्रू विच यू विल आस्क द पर्सन, share in their profit instead of the interest. Exactly. So we are going to talk about this in 14.5, folks, all of this. So but the question is, if there are two villages जहाँ पर A village में अंदर interest rate जो है वो 20% है और B village के अंदर 40% है, why can't someone borrow from village A and then give money in village B? Because of the fact of segmentation. These are very specialized relationship. No one will give money to you, and therefore the arbitrage that is there between two villages will remain. Then we are also going to talk in next section, which is called as rationing. Rationing का मतलब होता है कि for example, if this is the amount, suppose मेरा demand for credit ये at this interest rate, then I want L star amount of credit. But what will happen in the market is that there is going to be some amount of rationing. I will only get L hat amount of loan, irrespective of the interest rate. Even if I want to pay more interest, I will only get this much amount. So at the prevailing rate of interest, because of default, so remember, because of default, what happens is, even at the prevailing rate of interest, even at the market rate of interest, there will be credit rationing. I will not be able to get the amount of credit that I want from the market. And finally, the sixth feature of the credit market is that there is going to be there is going to be exclusivity. Exclusivity means that I can borrow only and only from one borrower, from one creditor. I cannot borrow from multiple creditors. So that is another feature of the markets in the rural areas. Now what we are going to do is, we are going to study certain theories of informal credit markets, जिसके ऊपर question भी आपके आए हुए हैं. Now these kind of explain all of these informal credit market theories. Now मैं आपको पहले ही एक overall story बता रहा हूँ कि macro story क्या है. ये क्या क्या बताएगा आपको? पहला बताएगा why rate of interest in informal setting. In informal setting will be more than rate of interest in formal. पहले तो ये एक्सप्लेन करेगा वाई इट इज़ वेरी हाई. दूसरा, इट इज़ यूसरस या वेरी हाई. तीसरा एक्सप्लेन करेगा ये क्रेडिट रैशनिंग, वाई देर इज रैशनिंग इन द क्रेडिट, वाई पीपल आर नॉट एबल टू गेट द अमाउंट ऑफ लोन दैट दे वांट एंड देयर विल बी क्रेडिट रैशनिंग. तो ये 3-4 चीज़ें जो है ये पूरा सेक्शन एक्सप्लेन करता है बाय डिफरेंट मॉडल्स. तो पहला जो हम पढ़ते हैं वो है लेंडर्स मोनोपोली. लेंडर्स मोनोपोली कहता है that the credit market is segmented, yes, but that does not mean that there is a complete monopoly of the lender. ऐसा नहीं है कि एक पूरे गांव के अंदर एक ही ये एक दादा बैठा हुआ है जो लोन सबको देगा. There are he might be able to provide to a number of people, but if he charges very extra, if he tries to enforce his monopoly, there is a person B who is willing to give loans at a competitive rate. So there is only some amount of local monopoly that is there in lending, but that cannot be stretched too far, and that cannot explain why the rate of interest in the informal sector is very high. So this does not explain that. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया. मॉडल्स अब समझने बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट मॉडल समझ में आ गया.
Yes or no? Thumbs up. ठीक है. So first model is that they will not that there is no absolute monopoly, and that does not explain explicitly high interest rates. क्या हो गया, किसको समझ नहीं आया इसमें? अरे सिंपल चीज़ है कि अगर आपके पास पूरी मोनोपली नहीं है, यू हैव मोनोपली विद लिमिट्स, दैट मीन्स यू कैन नॉट चार्ज. आप कहोगे मुझे 500% इंटरेस्ट रेट चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको अगर आप 30% मांगते हो, 40% मांगते हो तो ठीक है, कोई और बंदा 45% पे देने के लिए रेडी है. इतना ही फ़र्क है. But there are other people who are willing to lend maybe 5-10% more, but there are other competitions. So therefore you cannot extract too much of an interest rate just because you are saying that I'm a monopoly. ठीक है. So that is the case. In fact, that reminds me of a wonderful book. If someone has read Peter Thiel's 0 to 1, अपने ग्रेजुएशन के बाद पढ़ना है. पीटर थील इज़ द अर्ली इन्वेस्टर इन फेसबुक. ठीक है. पेपैल थे, फेसबुक, सबको इसने बनाया. बेसिकली इसी ने इलॉन मस्क को भी बनाया और इसी ने मार्क ज़करबर्ग को भी बनाया. ठीक है. देन the second thing is lenders risk hypothesis. Now lenders risk hypothesis basically says is that the lender, अब हम मान लेते हैं कि जो लेंडर है उसको उसको अपनी सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जितना मिल रहा है. दैट मीन्स मेरे पास 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, अब मुझे प्रोजेक्ट ए के अंदर मैं कोई प्रोजेक्ट एक्स में पैसा लगाता हूँ तो मुझे 8% रिटर्न मिलता है, और मैं लोन के लिए पैसा किसी और को देता हूँ तो भी मुझे 8% मिलता है. तो आई एम ओनली गेटिंग माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग मोर देन माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. दिस इज द मॉडल दैट वी आर सेटिंग अप, बट वी आर गोइंग टू ऐड रिस्क टू इट, कि रिस्क भी है, बट देर इज सब्सटैंशियल रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इन द क्रेडिट मार्केट्स. नाउ देर आर 2 kinds of risks. इनवॉलंटरी रिस्क, बेसिकली मिसफॉर्चून हो गया, क्रॉप फेलियर हो गया या कुछ और हो गया, या फिर वॉलंटरी या स्ट्रैटेजिक रिस्क भी हो सकता है. नाउ द कॉम्पिटिशन बिटवीन दीज मनी लेंडर्स एक्चुअली ड्राइव द एवरेज रिटर्न्स टू जीरो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. सो बेसिकली यू आर थिंकिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट्स जिसके अंदर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑलरेडी है. सो देर इज समथिंग कॉल्ड अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट. अगर याद हो तो इकोनॉमिक प्रॉफिट आपको जीरो मिलेगा. तो थिंक ऑफ दैट परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाली सिचुएशन जहाँ आपको जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट मिलता है. नाउ व्हाट इज द मनी लेंडर्स एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फंक्शन. उसको इतना तो पैसे मिल रहे हैं, उसने इतने पैसे दिए, उसने दिए L विच इज़ मे बी 1 लाख. उसके पास जो उसके पास वो था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, वो थी R. ठीक है, मान लो 8%. ठीक है. अब उसके पास जो दूसरा चीज़ है उसको लोन देना है आई पे. अब ये हम देखना चाहते हैं कि आई पे लोन देता है तो उसको क्या फ़ायदा होता है. ही विल अर्न 1 + I, से आई इज से 20%, तो 1 + 0.20 इंटू L ही विल अर्न विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ P, क्योंकि 1 - P प्रोबेबिलिटी से उसको पैसा नहीं मिलेगा, माइनस what is the opportunity cost. He could have invested in that particular X वाला project and he could have earned R. This is equal to 0. And if you manipulate this, you get this particular term. And what does this particular term says? If P is equal to 1, तो I will be equal to R, but P जो है 1 से कम होगा और इसीलिए I जो है वो R से ज़्यादा होगा. You can take anything. R को आप कोई एक फिगर ले लो, से R को ले लो 0.10 या 0.50 ले लो, और P को ले लो 0.50. दोनों को 0.50 लेके देख लो, आपको पता चल जाएगा. फॉर एग्जांपल ये कितना हुआ, 1.50 माइनस 1, तो 0.50 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया तो 1 ही आ गया. 1.50 माइनस 1.2. why is this not coming? रुको, 1.50 अपॉन, अच्छा सॉरी मैंने ये तो करा ही नहीं. हाँ, तो 1.50 तो 0.75 माइनस 1, वेट अ सेकेंड, 1 लेके देख लेते हैं ना. लेट्स टेक R एज 1. ठीक है. If I take R as 1, तो 1/1 divided by 2 minus 1, तो ये तो 0 आ रहा है यहाँ पर भी. अच्छा 0.5 है, सॉरी 0.5 है, वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने उसको वोट कर लिया था, सॉरी. सो इट वॉज 0.5, तो ये इस केस में भी हो जाएगा. ठीक है. सो दिस वॉज
0.5 तो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, सो दिस वॉज टर्निंग आउट टू बी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो आपका इंटरेस्ट रेट जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, अगर आपका आर जो हो जाएगा वो 0.5 होगा. लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू अगेन, आई बेसिकली मेस्ड अप समथिंग. Let me explain. Let R be equal to 0.5, P is equal to 0.5. So in this case what I will be 1 upon 0.5 upon 0.5 minus 1. This turns out to be 3 minus 1 which is 2. So आपका I हो गया 2 if your R is 0.5. That means अगर मेरा ऑल्टरनेट, अगर मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 50%, 0.50 है, 50% हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 200% होना होगा. दिस इज वॉट इट सेज, एंड दिस शोज कि वाई दिस मॉडल इज एबल टू एक्सप्लेन यू दैट इन द फेस ऑफ डिफॉल्ट वाई द इंटरेस्ट रेट इन द रूरल एरियाज विल बी वेरी हाई. सो दिस इज वॉट दिस मॉडल शोज यू. देन ये मॉडल समझ में आया सबको? ये मॉडल समझ में आया? किसी एक को नहीं समझ में आया, बाकी दूसरी क्लास कहाँ है मेरी? ओके व्हाट दिस मॉडल इज टेलिंग यू इज, देखो जल्दी से समझो, ये क्या समझा रहा है, ये इक्वेशन क्या समझा रहा है? ये इक्वेशन हमें समझा रही है दिस इज द रिटर्न दैट यू आर गेटिंग. जो हमारा बंदा है जो लोन दे रहा है उसको रिटर्न क्या मिल रहा है? उसको ये रिटर्न मिल रहा है विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी मिल रहा है उसको ये रिटर्न, क्योंकि 1 माइनस पी से तो उसको 0 रिटर्न मिलेगा, ठीक है. और उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है. सो दैट मीन्स ज़ीरो प्रॉफिट इम्प्लाइज, ज़ीरो प्रॉफिट कंडीशन का क्या मतलब है कि उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिल जानी चाहिए, यही उसकी वही है ना. तो अगर आप इसको इक्वेट करोगे, इसको माइनस करोगे इक्वल टू 0, तो उसके बाद इसको जब आप रीऑर्गेनाइज करोगे तो आपका ये आएगा. What this is showing you, if P is less than 1, अगर probability of success is less than 1, I has to be, rate of interest in the informal market has to be more than the opportunity cost. So this shows you that the rate of interest will be higher than the opportunity cost of money of the lender because of in the face of defaults. This is what this model tells you. अब समझ में आया? किसको समझ नहीं आया था दूसरी क्लास में यार? दूसरी क्लास, हाँ दूसरी क्लास में किसको समझ नहीं आया था? ठीक है. नाउ अब थर्ड मॉडल देखो. थर्ड मॉडल क्या है? थर्ड मॉडल इज डिफॉल्ट एंड फिक्स्ड कैपिटल लोन्स. नाउ अभी तक हमने इस वाले उसके अंदर हमने क्या बोला था? इस वाले के अंदर हमने बोला कि जो डिफ़ॉल्ट की प्रोबेबिलिटी है वो इनवेरिएंट है टू द अमाउंट ऑफ लोन. तो लोन आप कितना भी ले लो, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट जो है वो 50% ही है. यही हमने बोला था 0.5 50% इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट. बट डोंट यू थिंक दैट इज़ एन अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन? आप आज मुझे 2 करोड़ रुपये दे के देखो मैं कितनी तेज़ी से भागता हूँ, और अगर यही आप मुझे 10,000 रुपये दोगे तो मैं कहूँगा यार 10,000 रुपये क्या है, ठीक है, क्या लेके भागना है 10,000 रुपये, अब लाख रुपये भी लेके क्या भागना है? चोरी करो तो बड़ी चोरी करो, 20 करोड़ रुपये देकर देखो मैं विजय माल्या से तेज भाग के दिखाऊंगा आपको. सो अब पॉइंट इज कि देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफॉल्ट एंड द अमाउंट ऑफ लोन दैट यू आर गिविंग. एंड कैरिंग ऑन दिस रीजनिंग, इफ यू एक्सटेंड दिस रीजनिंग, the person will be willing to give a loan. जो आदमी लोन दे रहा है वो उसको लोन देना चाहेगा जो बार बार लोन लेगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपको अभी क्रेडिट कार्ड के अभी वो नहीं आएंगे. क्रेडिट कार्ड के फ़ोन उसी को आते हैं जिसका बैलेंस लो होता है, जिसकी फैमिली ऑब्लिगेशन ज़्यादा होती हैं. सो द पर्सन हु इज़ द बेस्ट, ये हम ना मैट्रिक्स बनाते हैं डेटा साइंस के अंदर कि स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के अंदर कि हु इज़ द बेस्ट पर्सन? अ पर्सन हु ओवर स्पेंड्स एंड हु डिलेज द पेमेंट. ये एक बंदा है, फॉर एग्जाम्पल ये स्पेंडिंग पैटर्न है, ठीक है, और दिस इज डिले और नॉट डिले. तो पर्सन हु डिलेज एंड पर्सन हु ओवर स्पेंड्स इज द परफेक्ट क्लाइंट फॉर द क्रेडिट मार्केट, बिकॉज वही इंटरेस्ट कमा के देगा आपको. जो आदमी कम स्पेंड करता है और डिफॉल्ट करेगा भी नहीं, वो तो आपके लिए कोई कैश काउ है नहीं ना, ये आदमी आपके लिए कैश काउ है.
तो आपके पास इंस्टाग्राम पे जितना आप खरीदोगे उतना ज़्यादा आपके पास एड्स आएंगे, ठीक है. सो दैट इज़ द लॉजिक फॉर दैट. So now what you see is the borrower is the loan can be used by the borrower to permanently put himself in a situation where he never has to borrow again. Such loans may not be forthcoming. आपने मुझे अगर 20 करोड़ का लोन दे दिया, मुझे ज़िंदगी भर कभी लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्या करूँगा, मैं पहले 10-20 करोड़ लेके भाग जाऊँगा और उसके बाद उसको केमन आइलैंड्स या फिर किसी बहामास में जाकर उसको इंटरेस्ट में डालूंगा और उसके बाद सिर्फ इंटरेस्ट पे जीऊँगा उसके बाद, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू. सो यू नेवर गिव अ लोन फॉर अ ह्यूज कैपिटल और ह्यूज अमाउंट फॉर अ फिक्स कैपिटल, दैट you will not give. So in the rural areas, the kind of loans that are given are only on working capital and consumption purposes, because you know that that client will come back to you and again and again and again and again and again. So that's why if you see, I mean, I'm going to relate it to something else. Have you seen in the IT world, everything has gone on to subscription model. For example, आप Apple Music सब्सक्रिप्शन, Adobe, इस वक्त मैं Adobe यूज़ कर रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन, हर चीज़ सब्सक्रिप्शन पे चल रही है. कोई आपको पहले क्या होता था, पहले तो आपको वन टाइम सॉफ्टवेयर मिलता था, ये लो सॉफ्टवेयर, ये लो विंडोज़ का सॉफ्टवेयर, ज़िंदगी भर के लिए रखो. आज की डेट में हर 3 महीने, हर 2 साल में विंडोज़ चेंज हो रही है और वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड चल रहा है. और MS ऑफिस पहले वन टाइम CD आती थी, अब आज की डेट में नो लाइफ टाइम, एवरीथिंग इज़ ऑन सब्सक्रिप्शन. एंटीवायरस, एवरीथिंग ऑन सब्सक्रिप्शन बेसिस. तो everyone wants you to drive into that subscription pocket वाला चीज़. So that is because they want you to become a repeat customer. This is what they want. कितने लोग repeat करते हैं आपके ऑर्डर को. Then the fourth thing is default and collateral. That collateral की डिफ़ॉल्ट की वजह से लोग collateral मांगते हैं. बट कोलेट्रल जो होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है फोक्स, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला और इसका नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, तो अच्छे से समझना ये वाला दोनों. नाउ अब ये जो मॉडल है, ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि अब कोई आप चीज़ डिफ़ॉल्ट करोगे ना, आप कुछ कोलेट्रल रखोगे. फॉर एग्जांपल, ये मैंने आपको रोड वाला एग्जांपल बताया था, ये मेन रोड है और ये प्राइम लैंड है और इसके पीछे बहुत बड़ी लैंड है फॉर अ बिग फार्मर, और ये स्मॉल फार्मर की लैंड है, ठीक है. Now what happens is that the borrower and the lender both can have a valuation on this piece of land. For example, small borrower जो है वो अपनी लैंड की एक वैल्यू लगाता है VS, और बिग borrower जो है वो इसी की लैंड की वैल्यू लगा रहा है VB. अपनी लैंड की नहीं, उसी की लैंड की. उसको शायद से पता है कि इस आदमी को, इस वाले को पता ही नहीं है कि उसकी रियल लैंड की वैल्यू क्या है, क्योंकि जब ये मेरे साथ जुड़ जाएगी तो मैं यहाँ पर ढाबा खोल लूँगा, या यहाँ पर मैं इंडस्ट्री खोल लूँगा, या कुछ खोल लूँगा जहाँ पर, या पेट्रोल पंप खोल लूँगा, और यहाँ पर मैं अपना एग्रीकल्चर का बिजनेस करूँगा. सो ही डज नॉट रियलाइज the true potential of his own land. And what we are going to study is that in what case the big lender would be enticed to actually make the terms of the loan such that the borrower doesn't actually pay back, and वो उसकी ज़मीन हड़प ले, ठीक है. तो we'll try to understand that model as well. So let's understand that. And this we will be able to explain the usurious interest rate. Why rate of interest? याद है हमने यही बात कर रहे हैं कि why rate of interest will be very high in the rural areas. Now suppose you have a farmer. अब इस मॉडल को कंसेप्चुलाइज करते हैं. Suppose a small farmer needs a loan of say 10 लाख रुपीज़. उसको 10 लाख रुपए चाहिए किसी भी पर्पज़ के लिए. अब उसको आई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बिग फार्मर है वो आई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है, और उससे वो वाली ये जो इंपॉर्टेंट लैंड है ना, ये वाली बड़ी वाली लैंड, ये जो छोटी वाली लैंड है, इसको कोलेटरल पे रख लेता है. इस लैंड की वैल्यू स्मॉल फार्मर कर रहा है VS, और बिग फार्मर इसी लैंड की वैल्यू कर रहा है VB. एंड यू कैन अंडरस्टैंड इन सिचुएशंस दैट VB माइट बी ग्रेटर देन VS, कि बड़ा वाला फार्मर चाहता है कि यार ये वाली लैंड मुझे मिल जाए तो मुझे बहुत फ़ायदा हो जाएगा, मेन रोड का एक्सेस मिल जाएगा मुझे, ठीक है. देन now let's assume एक और चीज़, that suppose अगर कोई बंदा जो है जिसने आपसे लोन लिया है वो आपका लोन का अमाउंट वापस पैसे कर भी नहीं पाता, तो उसके बाद उसको और फ्यूचर लोन्स भी नहीं मिलेंगे, और साथ में उसको ये भी उसकी मारपिटाई भी होगी, उसके साथ फिजिकल रिट्रीब्यूशन भी होगा, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल के खर्चे देने पड़ेंगे, और हो सकता है उससे कोई आगे सामान भी ना खरीदे. सो दैट कॉस्ट इज कॉल्ड एज F. दिस इज द कॉस्ट
ऑफ नॉट पेइंग द लोन ओवर एंड अबव जो अपने ज़मीन खोई, VS तो उसने ज़मीन खोई प्लस उसकी जो मार पिटाई के ऊपर जो उसको लोन मिलेगा, मार पिटाई के ऊपर जो उसकी कॉस्ट है वो F कॉस्ट है. Now let us conceptualize this model. Now there are two cases of when time comes to return the loan, we can conceive of two possibilities. The borrower may be in the state of involuntary default, where he does not have the he does not have the wherewithal to pay the money, और दूसरा the borrower can also contemplate willful default, और वो हो सकता है लेके पैसे भाग जाए. ऐसे मैं आपको बोल रहा हूँ 20 करोड़ लेके मैं भाग जाऊँगा, ठीक है, और से आप कहोगे कि कोलेटरल मेरा घर रख लो, तो मेरा घर तो 3 करोड़ का है, रख लो मेरा घर, मैं 100% 20 करोड़ लेके भाग जाऊँगा. तो उस केस में आप क्या करोगे? So what so we are going to conceptualize that. Now let's conceptualize that. When will the borrower prefer to pay the loan? The borrower will prefer to pay the loan if the rate of interest paid by him plus the principal amount is less than the value of the land that he puts that the value that he puts on his land plus the physical retribution के जो cost है. तो अगर इससे कम है, सपोज उसको 1,10,000 रुपये देनी है ये पूरा इंटरेस्ट मिला के, और उसकी इसकी कॉस्ट, लैंड की कॉस्ट और F की कॉस्ट जो है होती है वो 1,40,000 रुपये होती है, ठीक है. उसकी लैंड की कॉस्ट उसको वो वैल्यू करता है कि 1 लाख रुपए लिया था मान लो, तो 1,20,000 रुपये उसकी लैंड की कॉस्ट है मान लो, वैल्यू है वो मान रख के चल रहा है, और 20,000 रुपये की उसको वो करनी पड़ेगी, अपने हाथ तोड़वाने वाला डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, ठीक है. तो ये उसकी टोटल वो है. तो उस केस में ही विल प्रेफर नॉट टू डिफ़ॉल्ट. लेंडर की प्रेफरेंसेस देख लेते हैं. लेंडर कब इंटरेस्टेड होगा कि उसको लोन का पैसा वापस मिले? जब उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, जब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको मिल रहा है विल बी मोर दैन प्लस द प्रिंसिपल अमाउंट इज मोर दैन द वैल्यू ही अटैचेस टू दैट पीस ऑफ लैंड. और इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर लो तो यू विल गेट दैट VS प्लस F should be greater than VB. In this case, both the parties will not be interested in a default. But अगर ये situation नहीं hold करती, if this situation doesn't hold, then so basically this means that the lender valuation must not exceed by the borrower's valuation by too much. Now, if we turn this around and if we say VB is greater than VS plus F, that means that even if whatever the borrower prefers to repay the loan, the lender actually wants him not to do it, because he is more interested in the in the non-repayment of the loan, and therefore he will charge an interest rate which is extremely high, so that the farmer does not pay the loan, so that the farmer is not able to pay the loan. He will drive up the interest so that there is involuntary default, and that will lead to basically he appropriating the land. And in this case, the principal objective of the transaction is not to earn the interest rate but to actually appropriate the land. And this is how there is huge land inequity in the rural areas, especially in India as well. So this is what this model is. समझ में आया कि कैसे लैंड हड़पी जाएगी in case of this model? ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? This is an important model. All right, then comes the next model, the fifth model, which is default and credit rationing. Now what does this default and credit rationing means? Credit rationing का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि जो prevailing rate of interest है, ये demand for credit है, इस prevailing rate of interest पे इतना लोन मिलना चाहिए, बट आपको इतना लोन नहीं मिल पाएगा, आपको कुछ कम amount of लोन मिलेगा, ठीक है. And it is because of default that there is credit rationing in the market. We will understand this. Now how are we developing this model? We are developing this model by saying that suppose एक जो बंदा है जो पैसे जो लोन ले रहा है, जो फार्मर है, उसका प्रोडक्शन फंक्शन इज FL. जितना ज़्यादा वो लोन लेगा उतना ज़्यादा वो इनपुट्स लेगा, जितना ज़्यादा इनपुट्स लेगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, बट इट इज़ गोइंग टू फॉलो अ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है. तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं, और ये सोलो मॉडल की तरह आपको दिख रहा होगा कि ये सोलो मॉडल की तरह आपका प्रोडक्शन फंक्शन है, और ये आपका जिसको आप बोलते थे ना क्या था, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ प्लस आप डिप्रिसिएशन लेते थे, वैसे ही यहाँ पर इधर कॉस्ट क्या है, यहाँ पर द कॉस्ट इज इंटरेस्ट रेट 1 + i L into 1 + i.
तो व्हाट विल दिस इंडिविजुअल ट्राई टू डू, दिस इंडिविजुअल विल ट्राई टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. मैक्सिमाइज कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, इसकी अगर टेंजेंसी निकालोगे, फर्स्ट ऑर्डर टेंजेंसी निकालोगे, तो आप देखोगे कि जहाँ पर इस लाइन से पैरेलल ये मिलेगा तो वहाँ पर आपका जैसे गोल्डन ग्रोथ रेट आता था वैसे ही आपका यहाँ पर एल स्टार आ जाएगा. एल स्टार मीन्स दैट at I star rate of interest, L star amount of loan will be taken, and using this L star amount of loan, L star amount of output will be produced, and of this L star amount of profit, L into 1 plus I star amount of loan will be given back, और आपके पास A amount of profit बच जाएगा. ठीक है, ये मॉडल समझ में आया कि अभी क्या हो रहा है. ये तो आपने पहले सोलो में भी पढ़ा होगा. ये मॉडल समझ में आया अभी तक यहाँ तक. इसको पढ़ लेना शालिनी प्लीज़. कुछ नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि आप बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन देखोगे, और फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन के अंदर व्हाट यू एक्चुअली ट्राई टू सी इज़ कि आपका ये जो इस प्रोडक्शन फंक्शन के अगेंस्ट टेंजेंसी जो होगी वो इसके पैरेलल होगी, और उस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और वो मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है आपको. ठीक है, तो आप एल स्टार लोन होगा. बट अब हम मॉडल को थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं. अब मॉडल को हम कैसे चेंज करने वाले हैं. नाउ सपोज व्हाट हैपन्स इज दैट suppose there is, let's introduce the possibility of default. Now the possibility of default is that that the money अगर कोई willfully default कर लेता है. Now this is where the थोड़ा सा गेम थ्योरी भी यहाँ पर आ जाता है. अब क्या होता है कि अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया तो वो जो मनी लेंडर है, एक जो मनी लेंडर विल नेवर लेंड टू दिस पर्सन अगेन. ठीक है, and the farmer can go to the next best alternative and guarantee himself a profit of A from the next date onwards. तो फार्मर क्या कर सकता है फिर, वो नेक्स्ट पीरियड के लिए वो अगेन वो ए प्रॉफिट तो उसको मिलता रहेगा हर पीरियड के लिए, बट वो इस फार्मर से पैसा नहीं उठा पाएगा. ठीक है, तो उसको अपना पता है कि मुझे कितना रिटर्न मिलने वाला है. देखो, लेट अस पिन दिस अप. अब कैसे हम इसको करेंगे. when should a पहली बात तो फार्मर कब पार्टिसिपेट करेगा. फार्मर विल पार्टिसिपेट व्हेन उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो उसको एटलीस्ट ए अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे रहा है, क्योंकि उसने देख लिया है कि मुझे इस पे ए अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिल जाना चाहिए, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मुझे इतना प्रॉफिट तो मिल जाना चाहिए, विच इज़ ए. सो व्हाट ही इज़ इंटरेस्टेड इन, द फार्मर शुड पार्टिसिपेट इन सम इंटरेस्ट रेट एंड सम लोन साइज सच दैट जो लोन साइज से जो उसका आउटपुट बनेगा एंड जो उसको लोन का अमाउंट पे करना है शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू ए. दिस इज कॉल्ड एज पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट, कि अगर ये कंस्ट्रेंट फुलफिल हो रही है तो वो बंदा कहेगा कि हाँ मैं लोन लेने के लिए रेडी हूँ, नहीं तो मैं किसी और से लोन ले लूँगा, मैं इससे लोन ले लूँगा, कहीं और से लोन ले लूँगा. तो ही इज़ इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन. नाउ लेट अस से इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट व्हाट हैपन, अगर वो डिफ़ॉल्ट नहीं करता है तो क्या होगा. डिफ़ॉल्ट नहीं करता है तो उसको हर पीरियड में एल लोन मिलेगा तो इतना आउटपुट बना पाएगा, और कितना उसको रिटर्न करना है, एल इंटू 1 प्लस आई उसको हर पीरियड में रिटर्न करना है इंटू एन पीरियड्स. इतना उसको रिटर्न मिलेगा. अगर वो हर पीरियड में चुपचाप अपना लोन देता रहेगा तो उसको इतना रिटर्न हर पीरियड में मिलता रहेगा. And we know that this is at least equal to A, if not more. This is at least equal to A. तो उसको इतना रिटर्न मिलेगा. बट मान लो कि उसने कहा कि मैं लोन पे डिफ़ॉल्ट करूँगा. इफ़ ही डिफ़ॉल्ट्स ऑन द लोन व्हाट विल हैपन. फर्स्ट पीरियड में तो उसको इतना पैसा मिला. देखो फर्स्ट पीरियड में क्या होगा, उसको एफ एल तो आउटपुट मिल गया, बट आप कहोगे कि -1 प्लस आई इंटू एल क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो गायब कर गया ना. वो तो कहा कि मैं पैसे लेके मैं वापस कर ही नहीं रहा. और फिर क्या होगा, बाकी n-1 पीरियड के अंदर उसको इस बंदे से लोन नहीं मिलेगा, बट बाकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में उसको जो लोन मिल रहा है उससे उसको ए प्रॉफिट मिल रहा है. सो ही विल गेट n-1 इंटू ए फॉर ऑल दी अदर पीरियड्स एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट पीरियड, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में उसको इतना प्रॉफिट हो गया. नाउ what this says is that the person will not default. वो बंदा डिफ़ॉल्ट कब नहीं करेगा, when the return out of this, जब उसे हर पीरियड में लोन का पैसा वापस करके जो रिटर्न मिल रहा है इज़ मोर दैन, अगर वो फर्स्ट पीरियड में डिफ़ॉल्ट कर जाए और बाकी पीरियड में ए ले ले तो उसको इतना पैसा मिल रहा था. इफ़ दिस इज़ ग्रेटर देन दिस, दैट मीन्स दिस पर्सन विल नॉट डिफ़ॉल्ट. एंड इफ़ वी रीअरेंज दिस हमारे पास सेम ऊपर वाली इक्वेशन, यही इक्वेशन आ गई है, एक्सेप्ट फॉर दैट कि यहाँ पर आ गया
अपॉन n माइनस वन, एंड इफ n इज 1, अभी अगर सोचो ये शॉर्ट टर्म का बोरोवर है, ये एक बार लेके गायब हो जाएगा, तो क्या होगा, n हो गया 1, अगर ये 1 हो गया तो ये इन्फिनिटी हो गया, तो माइनस इन्फिनिटी वाली टर्म आ गई, दैट मीन्स ये तो ग्रेटर हो ही नहीं सकता, दैट मीन्स वो पर्सन 100% डिफॉल्ट करेगा। जितना शॉर्ट साइटेड बोरोवर होगा उतना वो n1 की तरफ ले जा रहा है, उसको छोटा सा ही सोचना, उसकी सोच ही छोटी है, वो छोटे फायदे में ही खुश है। तो जितना n1 के अराउंड है उतना वो डिफ़ॉल्ट की पॉसिबिलिटी है, और जितना n से दूर है उतना डिफ़ॉल्ट की पॉसिबिलिटी कम है। एंड इफ़ यू रीड्रॉ दिस डायग्राम, व्हाट हैपन्स इज, सेम आई है, ठीक है, आई वही है। व्हाट हैपन्स हेयर नाउ इज कि आपका अब i के साथ में n अपॉन n माइनस वन लग गया, तो इसकी जो स्लोप है वो ऊपर हो जाएगी, क्योंकि दिस हैज़ टू बी ग्रेटर, दिस हैज़ टू फॉर एनी n which is greater than 1, you can see that this function will shift like this। और अब यहाँ पर जब इसके साथ टेंजेंसी करोगे, अब पहले टेंजेंसी यहाँ आ रही थी, अब ये टेंजेंसी आ रही है, तो यहाँ पर अब आपको a प्रॉफिट मिल रहा है। तो पहले आपको जो लोन मिल रहा था, पहले आपको लोन इतना मिल रहा था इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, अब आपको इतना मिल रहा है। इतने लोगों को इतना लोन आपको नहीं मिल पा रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड एज क्रेडिट रैशनिंग, कि आप ज़्यादा लोन लेना चाहते हो, बट बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट, what is happening is that you are not able to take the amount of credit जो आपको लेना है। आपको सपोज 1 लाख का क्रेडिट लेना था, बट आपको सिर्फ 75,000 रुपये मिल रहे हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट। दिस इज दिस मॉडल दैट एक्सप्लेन्स यू दिस। ये मॉडल समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। मैं दूसरी क्लास से भी पूछता हूँ, ये फर्स्ट क्लास से पूछ रहा हूँ, दूसरी क्लास नॉट फर्स्ट क्लास, सॉरी, फर्स्ट क्लास को समझ में आ गया? ठीक है, ग्रेट, ओके। देन द नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन asymmetry and credit rationing. Now information asymmetry and credit rationing is the I think the last and the most important model। उसके बाद मैं आपको क्विकली आगे वाले भी मॉडल कराता हूँ, 1 मिनट में तो मैं आपको कराता हूँ, बताता हूँ इसका। अब ये वाला मॉडल भी अच्छे से कर लेना, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री के साथ बता रहा है, और यूजुअली क्वेश्चन जो है आपके यहीं तक आ जाते हैं। अगर एक दो चीज़ें और है वो मैं आपको एंड में बता दूंगा, जिसकी पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है, ठीक है, बट मेजरली क्वेश्चन यहीं तक आते हैं। नाउ अब पॉइंट इज, इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री कहाँ पर आती है? यू रियली डू नॉट नो द टाइप ऑफ बोरोवर, वेदर अ पर्सन इज़ अ सेफ बोरोवर। अब मेरे पास आता है बोरोवर, आता है मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है, मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, मेरे पास आता है एक सेफ बोरोवर और एक रिस्की बोरोवर। दोनों को मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। मेरे पास 2 लोग आते हैं, मेरी गाड़ी की चाबी मांगते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि मुझे अपनी गाड़ी दे दो, मैं आपको से हर रोज़ का 5,000 रुपये दूंगा। अब मुझे क्या पता कि वो जाके, वो पुणे वाले लड़के की तरह वो जाके आगे किसी को अगर मारा है, तो मेरी तो गाड़ी भी गई, ऊपर ओनर भी मैं हूँ, जेल भी मैंने ही जाना है, ठीक है। सो ऑल ऑफ दैट विल हैपन। सो दैट मीन्स देयर इज इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। आई डोंट नो वेदर द पर्सन इज सेफ और रिस्की। इन दिस केस व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट आई वांट टू सी। एंड क्योंकि आइडली क्या होना चाहिए, सेफ बंदे के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 जो होना चाहिए वो लो होना चाहिए, और इस बंदे के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा रिस्की है। But what will be the rate of interest in the market is one thing that we will see, and what we will also see is that this leads to credit rationing as well। जितना क्रेडिट होना चाहिए उतना क्रेडिट आपको मिलेगा नहीं, आपको कम क्रेडिट मिलेगा। ये भी रैशनिंग ही समझाने वाला है। जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गए क्लास में? हाँ, ये भी आपको क्रेडिट रैशनिंग ही समझाने वाला है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। नाउ देर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल, ठीक है, टू काइंड्स ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स। फर्स्ट इज अ सेफ टाइप, द अदर इज द रिस्की टाइप, ठीक है। नाउ ईच टाइप ऑफ बोरोवर नीड्स द सेम अमाउंट ऑफ मनी। वो 1 लाख रुपये लेना, 1 लाख रुपये लेने हैं, और जो लेंडर है उसके पास सिर्फ 1 लाख रुपये, या तो वो इसको दे सकता है, सेफ को दे सकता है, रिस्की को दे सकता है, और उसको पता ही नहीं है कि सेफ कौन है और रिस्की कौन है। ये मॉडल है हमारा। नाउ द बोरोवर कैन रीपे द इन्वेस्टमेंट इफ इट प्रोड्यूसेस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिटर्न्स टू कवर फॉर द रीपेमेंट, ठीक है। नाउ अगर वो सेफ बोरोवर को देता है, ठीक है, अब वो सेफ बोरोवर को देता है, तो सेफ बोरोवर जो है वो रिटर्न जनरेट करता है R, और जो रिस्की बोरोवर जो होगा वो रिटर्न करेगा R डैश, वेयर R डैश इज मोर देन R।
रिस्की हो सकता है, सेफ वाला हो सकता है सिर्फ 15,000 रुपये कमा रहा हो लाख रुपए पे, और ये हो सकता है 1 लाख रुपए भी कमा रहा हो लाख रुपए पे, कि वो सट्टा खेल रहा है उसके ऊपर से. सो वॉट वी नो इज दिस सिचुएशन कि एक बंदा रिटर्न कुछ देगा, एक बंदा रिटर्न कुछ देगा. नाउ व्हाट वी नो इज दैट बट ये जो है ये आर प्रोबेबिलिटीज, ये आर रिटर्न देगा विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, एंड 1 माइनस पी के साथ ये देगा ठेंगा पैसा वापस ज़ीरो. सो this is the model that we are setting, and what we are saying is that the lender are free to set interest rate without losing clients to the competing lenders. So we are saying that the lenders कोई भी rate of interest set कर सकते हैं. now अब lender को अगर rate of interest set करना है तो जो return होगा वो क्या होगा, highest return क्या होगा acceptable to him. the highest return acceptable to the person one will be, उसको R return मिल रहा है और उसको 1 प्लस आई इंटू आई वन मान लेते हैं, आई मान लेते हैं, इंटू एल देना है उसे, ठीक है. और दिस शुड बी इक्वल टू से हम कहते हैं कि उसको रिटर्न वो ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स कमा रहा है. तो अगर हम ये इक्वेशन को सेटअप करते हैं तो हमारा आई जो आ जाता है, आई वन जो आ जाता है वो आ जाता है आर अपॉन एल माइनस वन. ये हमने यहाँ से निकाला. सेम चीज़ हम एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर सेकेंड बोरोवर करते हैं तो वो उसको रिटर्न कितना मिलेगा, पी से वो पैसा वापस करेगा, 1 माइनस पी से तो पैसा वापस कर ही नहीं रहा, इंटू आर माइनस एल आई माइनस वन इंटू एल शुड बी इक्वल टू ज़ीरो. और इससे क्या आएगा, आई टू विल बी इक्वल टू आर एल डैश अपॉन एल माइनस वन, एंड वी नो दैट आर डैश इज मोर देन आर, सो देयर फॉर वी कैन से इज आई टू विल बी ग्रेटर देन आई. ये हमें पता चल गया. यहाँ तक मॉडल समझ में आया कि वाई आई टू विल बी मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड बोरोवर विल बी मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट बोरोवर, सिंपली बिकॉज ऑफ दिस मॉडल. ये समझ में आया? यस नो यस नो यस नो यस नो यस नो यस नो, कम ऑन. अरे एक गौरव जैन कोई समझ में आ रहा है क्या? चलो, सो दिस इज द मॉडल. नाउ अब हमने यहाँ मॉडल क्या सेटअप किया है, हमने मॉडल सेटअप किया है दैट द रिस्की बोरोवर इज विलिंग टू पे अ रिटर्न हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर देन द सेफ बोरोवर, एंड दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ हिज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. ठीक है. नाउ लेट अस बिल्ड दिस मॉडल. अब लेंडर के पास क्या चॉइस है? लेंडर के पास जो चॉइस है वो है कि क्या मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ये चूज़ करूँ कि मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ये चूज़ करूँ. अगर वो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज़ करता है तो उसके पास सिर्फ रिस्की काइंड ऑफ बोरोवर आएगा, क्योंकि वही अफोर्ड कर सकता है. मान लो मैं आप मुझे कहते हो कि सर मैं आपसे 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट लूँगी और आप मुझसे 5 करोड़ रुपए ले लो. मैं आपको कहूँगा कि 60% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो पर मुझे 2 करोड़ रुपए दे दो, क्योंकि मेरा इंटेंशन ही नहीं होगा उसको वापस करने का. मैं 2 करोड़ रुपए दे के आपको कुछ पैसे वापस दूंगा, लेके भाग जाऊँगा. ठीक है. So that basically shows कि higher the rate of interest, you are attracting even more riskier people from you. I mean, who will be coming to you, क्योंकि उनका इंटेंशन ही नहीं है पैसा देने का वापस. और अगर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखोगे तो आप जो है रिस्की वाले को भी केटर कर सकते हो और आप सेफ वाले को भी केटर कर सकते हो. बट द प्रॉब्लम इज यू आर नॉट एबल टू सर्टन हु इज़ रिस्की एंड हु इज़ नॉट. तो 50% चांस से आपका वो है कि 50% चांस हो सकता है कि आपने रिस्की वाले को दे दिया, 50% चांस आपने सेफ वाले को दे दिया. लेट अस सी द केस कि अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट I2 रखता है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट रखता है, तो क्या होगा. अगर वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट रखता है तो उसको रिटर्न कितना मिलेगा, उसको इतना रिटर्न मिलेगा विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ P, क्योंकि 1 माइनस पी था तो उसको पैसे वैसे ही नहीं मिल रहे, और उसने पैसा कितना दिया था, L दिया था. और अगर वो 1 वाला अगर वो 1 वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट रखता है तो क्या होगा. अगर वो 1 वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट रखता है तो उसको हाफ प्रोबेबिलिटी से क्या मिलेगा, उसको मिलेगा 1 प्लस I1 इंटू L माइनस L, ये मिलेगा. अगर उसने अच्छे वाले सेफ वाले बोरोवर को पैसा दिया तो ये सेफ वाले बोरोवर की प्रोबेबिलिटी है. ठीक है. प्लस हाफ इंटू P इंटू 1 प्लस I1 इंटू L माइनस L, और ये रिस्की वाले की प्रोबेबिलिटी है. क्यों रिस्की वाले की, क्योंकि यहाँ पर P प्रोबेबिलिटी आ गई साथ के अंदर, और क्योंकि ये L से L कट जाएगा, इसीलिए आपके पास ये फिगर आ गई और ये आ गई. ये प्रॉफिट इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई? प्रॉफिट इक्वेशन फॉर द बोरोवर आई समझ? प्रिशा को नहीं आई,
प्रिशा और किसको समझ नहीं आई, रजत को नहीं आई, ठीक है। देखो समझो इस चीज़ को, देखो व्हाट आई एम सेइंग इज लेंडर के पास दो ऑप्शन है, या तो वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट रख ले I2 रख ले, या फिर वो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट रख ले I1 रख ले। जब वो I2 रखता है तो क्या होगा, I2 रखेगा तो उसको सिर्फ रिस्की वाला इंसान ही मिलेगा, ठीक है। उसको सेफ वाला कहेगा यार मेरा तो रिटर्न इतना बन ही नहीं रहा, मैं तो इतना कमा ही नहीं सकता, तो मैं उससे पैसे क्यों लूँ, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई क्यों दूँ जब मुझे पता है कि मैं कमा ही नहीं पाऊँगा। तो सिर्फ रिस्की आदमी उस पर बाद जा पाएगा। जब रिस्की आदमी जा पाएगा तो जो बोरोवर जो लेंडर है उसको कितने पैसे मिलेंगे, उसको P प्रोबेबिलिटी से अपने पैसे वापस मिल रहे हैं विद इंटरेस्ट, और उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी कॉस्ट L ही है अपने पैसे देने की, तो उसका रिटर्न ये है पाई 2। समझ में आया, ये समझ में आया। अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 रखता है तो उसका रिटर्न कितना है, ये है, ये समझ में आया। प्रिशा और किसी और को समझ नहीं आया था ना, शायद से क्लास 1 के 2 के अंदर, ठीक है। अब अगर वो क्या करता है, अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखता है I1 तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, I1 पे कौन कौन बोरो करना चाहता है, सेफ वाला भी इससे बोरो करना चाहता है और रिस्की वाला भी इससे बोरो करना चाहता है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वो I1 ही रख रहा है। सेफ वाले की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, दो ही तो लोग हैं, तो 1/2 हो गया ना, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। जब इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो इसका जब ये अगर ये पैसे लेगा तो रिटर्न कितना करेगा, ये रिटर्न करेगा 1 + I1 × L रिटर्न करेगा -L, यही तो रिटर्न है उसका, यही रिटर्न है ना। जो लेंडर जो अगर इसको पैसे देता है तो रिटर्न कितना मिलेगा, दिस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हाफ, क्योंकि हाफ प्रोबेबिलिटी से ये सिलेक्ट हुआ। और अगर ये होता तो क्या होता, ये होता तो P × 1 + I1 × L -L, बट इसके साथ में P प्रोबेबिलिटी आ गई, क्योंकि P प्रोबेबिलिटी से वो पैसा वापस कर रहा है रिस्की वाला, 1 - P से तो कर ही नहीं रहा, और इनटू हाफ है क्योंकि हाफ इसकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये L इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये और ये तो कट गए ना, तो सिर्फ I1 × L रह गया और इनटू हाफ था, तो ये वाली पॉइंट रह गया और ये रह गया। अब समझ में आया, ठीक है। अब लास्ट चीज, नाउ इफ यू रीअरेंज ऑल ऑफ दिस, ठीक है, इसको आप नंबर्स, आपको हो सकता है एग्जाम में नंबर्स दे दिए जाएं इस चीज़ के, और नंबर्स, और आई थिंक आई हैव सीन अ न्यूमेरिकल इन द पास्ट ईयर्स जिसमें इनके नंबर्स दे रखे थे, एंड ऑल यू नीड टू सी इज, ऑल व्हाट वी फाइंड इज दैट for this to work out, for the borrower to basically for the lender to charge a lower rate of interest, this equation should hold. That means the high risk type should be sufficiently high risk. Remember P is the chance for default, and the lender will not raise interest to I2, thereby attracting the riskier type. तो अगर high risk type is sufficiently risky, then only in that case the interest rate will be low, ठीक है। एंड दिस विल लीड टू, और इसकी वजह से आपको ये भी समझ में आ गया कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट I1 होगा तो उसका मतलब क्या होगा, दो लोग थे सेफ और रिस्की, किसी एक को ही तो पैसा मिलेगा, एक को तो पैसा नहीं मिला, दैट मीन्स क्रेडिट रैशनिंग हो गई। सो दिस इज शोइंग यू क्रेडिट रैशनिंग इन फेस ऑफ क्रेडिट रैशनिंग ऑल्सो इन केस ऑफ जहाँ पर डिफ़ॉल्ट हो रहा है। सो और इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री आ रही है, पहले डिफ़ॉल्ट वाला केस और ये इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री वाला, ठीक है। अब हम लास्ट केस पढ़ लेते हैं इसका, विच इज़ डिफ़ॉल्ट एंड इन्फोर्समेंट, ठीक है। नाउ ये मैंने आपको मॉर्निंग क्लास में नहीं कराया था, आई एम कवरिंग दिस राइट नाउ। व्हाट इज़ दिस डिफ़ॉल्ट एंड इन्फोर्समेंट। नाउ अभी तक हमने पॉसिबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट देखी थी, प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन our predictions. Now we also know that what needs to happen for the default to not happen. For default to not happen हमने कहा था ये वाली इक्वेशन अगर आपको याद हो तो FL minus n/n-1 into क्या था 1 + I into L should be greater than equal to A, ठीक है। ये आपकी नो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट थी, ठीक है,
नो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट थी, याद रखना ये नो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट थी. नाउ which means that the constraint, this is the constraint, thus a default today followed by n minus 1 periods of a profit should not be more valuable than n periods of non defaulting. ये हमने पूरा पढ़ लिया था, ठीक है. Then the fundamental implication is that the money lender must yield him a greater profit than he could get elsewhere by defaulting. This is of course we are saying this, that an algebraic way to note the borrower's profit is that this is what he is getting, या उसको मिल रहा है प्रॉफिट अगर वो डिफ़ॉल्ट नहीं करता, ठीक है. एंड दिस शुड बी ग्रेटर दैन दिस, ठीक है. एंड दिस हमें पता है, दिस इज ऑब्वियसली हमें पता है ये इक्वल टू है. सो दिस इक्वेशन हमें ये पता है. बट what this also shows you is, this equation is also showing you borrowers who are patient, ठीक है. borrowers who are patient, ये वाला सिचुएशन कब आया? ये वाला सिचुएशन तब आएगा जब क्या कहते हैं, जब ये इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. अब borrowers who are patient or have larger mental horizons can actually get a relatively worse deal without the fear of default, क्योंकि उनको जो रिटर्न मिल रहा है उनको कम रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि दिस इज ड्राइविंग दिस वैल्यू टू बी लेस दैन दिस. अगर एन जो आपका लार्ज होना शुरू हो जाता है, सो दिस इज वाई there is this thing. Now the borrower, if the borrower is very patient, the threat of termination of future credit carries a greater bite. और क्यों है ग्रेटर बाइट? बिकॉज, और उसको बेकार टर्म इसलिए मिलता है क्योंकि अगर मैं पेशेंट बोरोवर हूँ और मुझे पता है मुझे हर साल इस बंदे से बोरो करना है, तो लेंडर क्या करेगा? लेंडर कहेगा कि यार इसको एक्सप्लॉइट कर लो. क्यों इसको एक्सप्लॉइट कर लो? क्योंकि इसको तो हर साल मेरे पे ही डिपेंडेंट है और ये मेरे से अलावा किसी से पैसे भी नहीं ले रहा है. सो देयरफॉर द लेंडर कैन चार्ज अ स्टिफर रेट ऑफ इंटरेस्ट विदाउट द फियर ऑफ डिफॉल्ट, बिकॉज ही नोज दैट द बोरोवर इज पेशेंट. इम्पेशेंट बोरोवर को ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है. This model gives us a picture how repayment can be ensured through dynamic threats and incentives. ठीक है. Now अब इसके लिए वो कहता है कि एक और सिचुएशन है कि अगर आपकी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर लेंडर क्या कर दे, अब उसको थ्रेट देना है. थ्रेट कैसे दे सकता है? थ्रेट कैसे कर सकता है कि अगर किसी बंदे ने बोरो किया तो उस बोरोवर की फ़ोटो लगा के हर जगह पर चिपका देगा, पूरे के पूरे गांव में हर वॉल पे चिपका देगा, और everyone else will know in the village that this person has not paid the money, and this will lead to throughout the community, and the lender will be eager to make this default public, and because of this this will be very easy to do. तो अब ये बेसिकली बात क्या कह रहे हैं कि एक्सट्रीम जो इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ होती हैं उसके अंदर इंफॉर्मेशन एसिमेट्री बहुत कम होती है, ठीक है. क्योंकि आपने एक बंदे से बोरो किया तो सिबिल स्कोर आपका पता चल गया, और हर लेंडर को पता है कि आपने इस बंदे से बोरो कर रखा है, हर बंदे को पता है. तो आपको, अगर आपने एक बंदे के साथ डिफ़ॉल्ट किया तो आपको कोई भी और लोन नहीं देगा. और जो बिल्कुल ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ होती हैं उसके अंदर भी होता है. आपने आपके पूरे गांव में सिर्फ आपके परिवार वाले रहते हैं. जैसे हमारे गांव में आई एम कम फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड मुरैना, ठीक है, भिंड मुरैना. चंबलों का पूरा एरिया है, वहाँ पर सारे डाकू ही हैं. एक डाकू दूसरे डाकू का भाई होता है. तो अगर आपने एक बंदे से आपने पैसा नहीं दिया तो पूरे के डाकू परिवार में सबको पता चल जाएगा कि भाई इसने इसका पैसा नहीं दिया है, तो सारे के सारे उससे बात करना बंद कर देंगे. सो वहाँ पर भी ग्रेप वाइन की वजह से एक आंटी दूसरे आंटी के कान में बता देगी, दूसरी आंटी तीसरे कान में बता देगी, तो सबको बात पता चल जाएगी वहाँ पर. और इन एक्सट्रीम इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ भी बिल्कुल इंफॉर्मेशन स्प्रेड बहुत अच्छा है. बट इंटरमीडिएट वाले केसेस के अंदर जहाँ पर ये ट्रांजिशन हो रही है, जैसे हमारी कंट्री है ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल टू एडवांस, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री नहीं होती, क्योंकि आधे टाइम गांव में रह रहे हैं, आधे टाइम गांव से बाहर है, इन एंड आउट हम खेल रहे हैं. उस केस में इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री नहीं होती और वहाँ प्रॉब्लम होती है इस चीज़ की. एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट दिस सेज. देखो, the information flows follows in a U pattern. Both traditional and economically advanced countries have a lot of it, whereas societies in transition do not have. ठीक है. So this is this model. एक बार इस मॉडल को और पढ़ लेना. तो हाँ, इसको
मॉडल को पढ़ लेना। फिर उसके बाद हमारा आता है इंटरलिंकेजेस। हाँ, इंटरलिंकेज ट्रांजैक्शन। अब ये इंटरलिंकेज ट्रांजैक्शन क्या है? अब व्हाट एक एक मिनट में आपको बता देता हूँ व्हाट दिस मॉडल इज टॉकिंग अबाउट। अब एक पहला होता है इंटरलिंकेज ऑफ द क्रेडिट। तो ये बेसिकली बता रहे हैं कि एक मार्केट दूसरे मार्केट से लिंक्ड होती है और उसकी वजह से, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ऑफ द क्रेडिट मार्केट जो हमने बताया ना, इसका बताया कि एक बंदा दूसरे बंदे को लोन दे रहा है, एक प्रोड्यूसर है और एक ट्रेडर है, या फिर एक बंदा टेनेंट है और एक बंदा लैंडलॉर्ड है। तो मेजरली जो रिलेशनशिप्स हैं इन दी क्रेडिट मार्केट आर बेस्ड ऑन दीज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो आप क्या करते हो, आप ट्रांजैक्शंस को कंबाइन करते हो, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन को ऐड कर देते हो प्रोडक्शन की ट्रांजैक्शन के साथ टू मेक इट मोर सिक्योर, और क्रेडिट की कई बार क्रेडिट की ट्रांजैक्शन आप मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हो और प्रोडक्शन पे आप प्रॉफिट का शेयर मांग लेते हो। इस तरीके से आप सरप्लस एक्सट्रैक्ट करते हो। सो दिस मॉडल, दिस एंटायर सीरीज इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि कैसे मार्केट के अंदर देयर इज अ क्रेडिट इंटरेस्ट, क्रेडिट मार्केट एंड अ प्रोडक्शन मार्केट, उन दोनों का इंटरलिंकेज कर दिया जाता है। और उस इंटरलिंकेज की वजह से व्हाट हैपन्स इज दैट द पर्सन हु इज गिविंग द लोन एट टाइम्स इज एबल टू एक्सप्लॉइट द पर्सन इवन मोर, इवन दो द इंटरेस्ट रेट माइट बी द नॉर्मल इंटरेस्ट रेट, जो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, जो कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है, बट प्रोडक्शन से उसका वो शेयर लेना शुरू कर देगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब पहला जो इसमें मार्केट आती है, पहला जो केस आता है वो हिडन रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उसके अंदर क्या है कि केरला के अंदर, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, देन यू लक्षद्वीप के अंदर भी यही है, इस्लामिक सोसाइटीज़ के अंदर शरीयत लॉ के अंदर दिस इज बैंड, एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपन्स इज इंटरलिंकेड कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स अ वे आउट कि लार्ज लैंड ओनर क्या करेगा, ही विल आस्क फॉर राइट्स ऑफ पार्ट ऑफ द बोरोवर्स आउटपुट एज लॉन्ग एज दिस थिंग इज स्टैंडिंग। एंड ट्रेडर क्या कर सकता है, वो कह सकता है सप्लायर को कि ही हैज़ टू सेल दी क्रॉप एट अ डिस्काउंटेड रेट। देन दूसरा क्या है, इंटरलिंकेज एंड इन्फॉर्मेशन। अब बिकॉज इंटरलिंकेज के केस में क्या होता है कि क्या कहते हैं, जो आपका रीपेमेंट है और जो इन्फोर्समेंट है वो बड़े आराम से हो सकता है, बिकॉज अब ट्रेडर है, अब ट्रेडर को तो सामान बेचना ही है ना, उसको तो सामान बेचना ही है, तो उसके लिए तो बहुत आसान है, बिकॉज ही नोज कि what is the person buying from him and whether he will be able to produce it or not, and he has the first claim over the product. So because of that interlinkage and the information he has, this is one of the best models. Then और इन्फोर्समेंट भी बहुत आसान है, इन्फोर्समेंट बहुत आसान है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यू हैव द कंप्लायंस विद यू, वेयर if the person does not agree to your terms, or if he doesn't follow what you have said, then you can evict him. So there is an interlinked threat कि अगर आपने लोन मार्केट के अंदर कुछ प्रॉब्लम करी तो उसका इम्पैक्ट आपके प्रोडक्ट मार्केट पे भी होगा, ठीक है। So because of that interlinkages you can exploit the person even more. And now comes interlinkage and creation of an efficient surplus. ये जो है, ये वाला पार्ट जो है becomes important, ये वाला मॉडल जो है becomes important, क्योंकि यहाँ लोन पे रीपेमेंट इन लेबर है। फिर उसके बाद दूसरा मॉडल आ जाता है और मैं वो आखिरी मॉडल आपको कराऊंगा, लोन रीपेमेंट इन आउटपुट, ठीक है। और उसके बाद यू आर फ्री, ठीक है। हाँ, उसके बाद वो ऑल्टरनेटिव क्रेडिट पॉलिसीज आप अपने आप कर सकते हो, दैट शुड बी सफिशिएंट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, कैन वी टेक अ ब्रेक फॉर 2 minutes फोक्स? मैं पिछले 1 घंटे से बोले जा रहा हूँ। 2 minutes, ओके। नाउ interlinkages and creation of efficient surplus. Now अब ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि इंटरलिंकेज जो है is a way to basically counteract the distortion of loan amounts, कि लोन अमाउंट ज़्यादा लेना है, लोन अमाउंट कम लेना है, कई बार ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। और टोटल सरप्लस कितना बचा है क्या कहते हैं लेंडर के पास और बोरोवर के पास, ये हमें देखना है। स्पेशली how much can the lender actually, how much can he extract from the borrower as well, we are also interested in this. Now पहले हम केस जो हम क्या कर रहे हैं, लोन रीपेमेंट इन लेबर। मैंने आपको क्या बताया था
कि लोन रिपेमेंट दो तरीके से हो सकता है, या तो आप पैसा वापस करो या आप लोन लेबर के फॉर्म में काम करो उसके लिए, या फिर तीसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी ज़मीन जो है वो आप उसको दे दो। तो यहाँ अभी हम बात कर रहे हैं लोन रीपेमेंट इन दिस, एंड फिर दूसरा हम बात करेंगे लोन रीपेमेंट इन कहाँ गया इन आउटपुट, जहाँ पर आप आउटपुट में से आप शेयर दोगे, ठीक है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि लोन रीपेमेंट जो है आप लेबर के फॉर्म में अपना दोगे, दैट मीन्स वेजेस जो होगे वेजेस से आप निकालोगे अपना लोन रीपेमेंट। तो ध्यान रखना यहाँ पर वेजेस से निकालोगे पेमेंट, और वहाँ पर आउटपुट के टर्म्स में आप रीपेमेंट करोगे। नाउ अब यहाँ पर दो केसेस हैं। सपोज देर इज़ अ लेबरर कॉल्ड अंका, जिसको अपनी फैमिली को फीड करना है थ्रू स्लैक एंड पीक पीरियड्स इन एग्रीकल्चर। स्लैक पीरियड क्या हुआ? स्लैक पीरियड, पीक पीरियड, स्लैक पीरियड, पीक पीरियड। दिस इज़ द टाइम ऑफ पीक पीरियड इज़ द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, ठीक है। और दो हार्वेस्ट और एक्चुअली यहाँ पर सोइंग भी होगा। सोइंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए और हार्वेस्ट के टाइम पे बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए, और बीच में तो लेबर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, प्लांट तो अपना आप ही उग जाना, ठीक है। तो बट इस इंसान को अपनी फैमिली को तो फीड पूरे टाइम करना है, तो दैट मीन्स दिस पर्सन कॉल्ड अंका विल नीड अ क्रेडिट या कंजम्पशन क्रेडिट थ्रू आउट द ईयर। बीच में इस साइकिल के बीच में काम करना पड़ेगा। यूजली फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स जो है वो NREGA में या तो काम करना शुरू कर देते हैं, या फिर वो इधर चले जाते हैं, क्या कहते हैं, शहर में आ जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। नाउ to make this possible, to make this exposition simple, suppose there is no employment available in the slack season, ठीक है, that means NREGA भी नहीं है, and whereas in peak period क्या है, harvesting jobs are available at that pay the wage rate of W. Now but to finance the slack period that person needs to borrow, and suppose now there is a large farmer called बिरजू, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये पिछले जन्म में इसके साथ कुछ ना कुछ घटना हुई है, इसने नाम भी ऐसे रखे हैं जो पुराने ज़माने के हैं, ठीक है। तो नाउ सपोज देर इज़ दिस लार्ज फार्मर called Birju who hires this harvesting labor during the peak season, also has access to fund at opportunity cost I per unit. That means उसके पास फंड्स पड़े हुए हैं इसको देने के लिए, और उन फंड्स की कॉस्ट इज I per unit. Now Birju is in position to lend to Anka. Now what happens is, because Anka is a laborer and Birju is the employer, Birju has the option to interlink his credit contract. The credit का जो पैसा उसको लेबर कॉन्ट्रैक्ट के साथ लिंक कर सकते हैं। नाउ अब वो कैसे करेगा, और अगर पैसा नहीं दिया तो उसको नौकरी पे नहीं रखेगा क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है नौकरी का। तो अब हम देखना चाहेंगे कि हाउ द एक्सट्रैक्शन हैपन्स। नाउ try to imagine this interlinkage has two components. Offer loan chosen by Anka at the rate of interest I chosen by Birju. लोन अमाउंट वो चूज कर रहे हैं, अंका चूज कर रही है, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट आई स्टार विच इज चोजन बाय बिरजू, एंड ऑफर अ वेज रेट W स्टार एट विच अंका विल प्लेज द सप्लाई ऑफ हर लेबर टू बिरजू इन रिटर्न ऑफ द लोन। तो दो चीज़ें, दो ट्रांजैक्शन हो रही हैं। आई स्टार पे बिरजू जो है वो अंका को लोन दे रहा है, और W स्टार पे अंका जो है वो बिरजू के लिए काम करना चाह रही है, ठीक है। अब ये जो दो ट्रांजैक्शंस हैं ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं। W स्टार एंड I स्टार could be linked, would be related to their counterparts W and I in a variety of ways. In particular, W star might be equal to W, which is another way to saying that there is no interlinkage and the deal is pure a question of credit deal. अब मार्केट में जो प्रिवेलिंग जो वेज है वो W है, और जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो I है, ठीक है। अब अगर W स्टार के इक्वल है, इसका मतलब उससे जो पैसा मिल रहा है, उसको जो अपनी वेज रेट मिल रही है वो तो मार्केट का रेट मिल रहा है। दैट मीन्स दिस इज़ अ प्योर क्रेडिट वाली मार्केट जिसमें उसने क्रेडिट पे कुछ पैसा उठाया। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि W स्टार कैन बी लेस देन W। Now the task is how to see how W star and I star was chosen. हम यही देखना चाह रहे हैं कि कैसे W जो है, W स्टार जो होगा वो W से कम होगा, उसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट उससे किया जाएगा पैसा। Now
To figure this out, what we have done is the figure displays various combinations of slack and peak season consumption available to Anka under the contract. W star and I star on the left hand side panel considers the case where W star is less than W and I star is greater than I. दैट मीन्स वो इंटरेस्ट भी मार्केट से ज़्यादा दे रहा है और वो W उसको वेजेस भी मार्केट से कम मिल रहा है. तो अब देखो ये आपकी W है, ठीक है, ये आपकी W है. अब उसको 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 और ये आपकी आई वाली है. अब वो क्या कर रहा है, वो इंटरेस्ट रेट जो दे रहा है वो इंटरेस्ट रेट ये वाला दे रहा है और उसको जो वेजेस मिल रही हैं उसको मिल रही है इस W स्टार से. अब वो इस वेज पे देखो, इस वेज पे वो क्या कर रहा है. इफ़ यू सी दिस, व्हाट इज हैपनिंग इज the right hand side panel basically says the opposite कि W is greater than W star and I star is less than I. The former corresponds to where loan repaid is with the interest rate both in cash and labor. अगर W star is less than W and I star is more than I, what does that mean? कि जो लोन लिया गया है उसके लिए वो इंटरेस्ट भी मार्केट से ज़्यादा पे कर रहा है और अपनी वेजेस से भी पैसा पे कर रहा है, कैश में भी पे कर रहा है. दिस मीन्स कैश से भी पे कर रहा है और ये मतलब लेबर से भी पे कर रहा है पैसा. और अगर W स्टार W से कम है, दूसरा वाला केस, एंड I स्टार इज़ लेस देन I, इसका मतलब क्या है, द कैश ट्रांजैक्शन इज सब्सिडाइज. मार्केट में कम रेट ले रहा है बट उसके बदले में जो पैसा उससे ले रहा है वो वेजेस के फॉर्म में उससे ज़्यादा पैसा ले रहा होगा. उसके मतलब इंट्रिंसिकली यू कैन से उसके प्रॉफिट के टर्म्स से उससे ज़्यादा पैसा ले रहा है, तो उससे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट यहाँ से कर रहा है. दिस लोन इज सब्सिडाइज इन टर्म्स ऑफ कैश पेमेंट्स बट रीपेमेंट इज एक्सट्रैक्टेड इन टर्म्स ऑफ लेबर. ये दोनों मॉडल पहले समझ में आए कि नहीं आए. दो तरीके हैं पैसा लेने के. देखो, एक उसको वेजेस भी कम दो और दूसरा उससे इंटरेस्ट भी ज़्यादा लो. इंटरेस्ट ज़्यादा का मतलब उससे कैश कंपोनेंट ले रहा है और वेजेस कम देने का मतलब उससे लोन उससे लेबर कंपोनेंट से आप पैसा ले रहे हो. और उसका जो ऑपोजिट है, वो ऑपोजिट क्या है, उसका ऑपोजिट इज़ कि आप उसको वेजेस में आप हाँ, आप उसको क्या कह रहे हो, आप उसको कह रहे हो कि मैं तुझे इंटरेस्ट रेट तो मार्केट से कम दे रहा हूँ बट आप उससे यहाँ से पैसा ले रहे हो. नाउ इन बोथ केसेस द रिटर्न टू बिरजू इज गिवन बाय द algebraic सम ऑफ द सेगमेंट ए बी इज द इंटरेस्ट पेमेंट. ठीक है, ये उसका रिटर्न है अगर वो नॉर्मल वो रखता है बट बिकॉज उससे वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो इसको इतना रिटर्न एक्स्ट्रा मिल रहा है. एंड बी सी यू कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ कि वो उसको वेजेस कम दे रहा है ना अपने उससे, तो बी सी इज़ द अमाउंट जो उसको ये उसको अमाउंट मिल रहा है उसके लेबर कंपोनेंट से और ये उसको अमाउंट मिल रहा है उसके कैश कंपोनेंट से. ठीक है, उसको बिरजू को टोटल पैसा कितना मिल रहा है, उसको ए सी पैसा मिल रहा है. ठीक है, ए सी उसको टोटल पैसा मिला. ए बी मिला उसको इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट में जो उसने पैसा कमाया, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी वो थी, उसने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लिया तो उसको ये ए बी का फ़ायदा मिला. और फिर उसने क्योंकि वेजेस भी कम दिए तो उसको यहाँ पर बी सी का भी यहाँ पर फ़ायदा हो गया. सो दिस इज़ व्हाट दिस इज. सो लेफ्ट हैंड ये रहा AB interpretable in the terms of interest return and BC interpretable in terms of employment return. ठीक है, और अगर आप राइट हैंड साइड पैनल देखोगे तो राइट हैंड साइड पैनल में आपको क्या दिखाई देगा, उसने BA जो है वो तो नेगेटिव है क्योंकि उसने तो ये सब्सिडाइज कर दिया. ये रेट ऑफ इंटरेस्ट था मार्केट में, वो उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो दैट मीन्स ये तो हो गई उसकी सब्सिडी ऑन लोन. ठीक है, कैश कंपोनेंट का लोन. और उससे ए सी उसको जो वेज रेट दिया उसने बहुत ज़्यादा कम दिया. ए सी इज़ द अमाउंट, सॉरी बी सी इज़ द अमाउंट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बी सी इज़ द अमाउंट जो उसने वेजेस उसको कम दी. अल्टीमेटली उसको प्रॉफिट जो हुआ वो ए सी का ही हुआ क्योंकि ये तो नेगेटिव था, उसको प्रॉफिट ए सी का ही हुआ. तो ये दूसरा तरीका है. ठीक है, ये दूसरा तरीका है. बोथ केसेस बिरजू गेट्स द अमाउंट ए सी. यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया ना. यहाँ पर दो मॉडल हैं. ठीक है, ओके, आई विल एक्सप्लेन इट. देखो,
दो मॉडल हैं, दो मॉडल क्या है, मॉडल वन एंड मॉडल टू। अब क्योंकि ये इंटरलिंक्ड ट्रांजैक्शंस हैं, दिस इज इंटरलिंक्ड क्रेडिट मार्केट ट्रांजैक्शंस, तो क्रेडिट मार्केट को साथ में प्रोडक्शन के साथ लिंक कर दिया, और यहाँ प्रोडक्शन इज इन फॉर्म ऑफ वेजेस, ठीक है, वे आपकी ही लैंड पे काम कर रहा है वो आदमी। अब आप दो तरीके से पैसा ले सकते हो। मॉडल वन के अंदर क्या कर रहे हैं, आप उसको जो वेज रेट दे रहे हो वो भी मार्केट वेज रेट से कम है, दिस इज दैट दिस पर्सन इज पेइंग इन टर्म्स ऑफ लेबर, और जो आपको इंटरेस्ट रेट आप उससे ले रहे हो वो भी मार्केट इंटरेस्ट से ज़्यादा है, तो ही इज़ ऑल्सो पेइंग इन टर्म्स ऑफ कैश, ठीक है। अब मार्केट का जो वेज रेट है वो आपको जो दिख रहा है वो डब्ल्यू ए वाला वेज रेट है, ठीक है। अब आप इंटरेस्ट ये वेज रेट है आपका नॉर्मल वाला। अब क्या सिचुएशन क्या है, सिचुएशन इज लैक कंजम्पशन के केस के अंदर आप क्या कर रहे हो, आप उसको बोल रहे हो कि मैं तुझे इतनी वेज रेट दूंगा, ठीक है, और जो आपसे इंटरेस्ट मैं चार्ज करूंगा वो चार्ज करूंगा ये वाला इंटरेस्ट रेट, ये वाला इंटरेस्ट रेट, ये मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैं आपसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो वो जो बंदा है वो एक्चुअली में पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, वो वेज रेट भी कम ले रहा है और वो इंटरेस्ट भी ज़्यादा दे रहा है। अब हम कंपोनेंट ट्राई करने की कोशिश करें कि उसको फ़ायदा, दूसरे बंदे को फ़ायदा कितना हो रहा है, एक्स्ट्रा फ़ायदा कितना हो रहा है। एक्स्ट्रा फ़ायदा इतना हो रहा है कि मार्केट में जो रिटर्न आ रहा था वो आ रहा था ये रिटर्न इंटरेस्ट रेट का, आप उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, इतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हो। दिस ए बी गैप इज बेसिकली शोइंग द एक्सेस ऑफ आई स्टार ओवर आई, विच बेसिकली इज शोइंग यू how much extra cash are you demanding from this particular person, and this BC is representing you by how much is the difference between W star, how small is W star as compared to W. This is the component of labor being underpaid, जो आप उसको underpay कर रहे हो लेबर। तो AB और BC को ऐड करोगे तो आपको बिरजू का सरप्लस मिल जाएगा कि बिरजू इतना पैसा कमा रहा है इस पूरी स्कीम से। मॉडल समझ में आया ये वाला, यस और नो, मुस्कान, ठीक है। नाउ मॉडल टू क्या है, मॉडल टू में यू आर सेइंग दैट you say that I will give him lower wages, but I will give him extremely low wage, but I will also subsidize him in terms of interest rate that I will charge him will be lower than the market rate of interest. कई बार आपने सुना है ये केस, I'll give you an example, buy now pay later, सुना है? अब ये सिचुएशन क्या है, आप किसी आदमी को बोल रहे हो कि, और आपने सुना होगा ज़ीरो EMI, ज़ीरो इंटरेस्ट EMI, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड ज़ीरो इंटरेस्ट EMI बाय द वे, ठीक है। कभी आप उसमें टेक्निकल डिटेल्स पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा ज़ीरो कॉस्ट EMI कुछ नहीं होती है, ठीक है। नाउ जो आपको एक्चुअली में पैसा आप एक साथ दे देते तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाता। नाउ व्हाट हैपन्स इज यू आर आस्किंग समवन, एंड दिस इज़ काइंड ऑफ अ प्रीडेटरी थिंग, ठीक है। वाई इज़ इट प्रीडेटरी, क्योंकि आप ये इंसान जो होगा वो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेगा, वो कहेगा कि यार ये चूज़ कर लेता हूँ अभी के अभी, बिकॉज आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है मार्केट से, बट आपको ये नहीं पता कि वो आपके प्रॉफिट को और आपकी जो एक्चुअल लेबर है उससे वो कॉस्ट ले जाएगा। अब वो ये क्या कर रहा है, BA जो है वो AB की जगह BA हो गया, मार्केट का रिटर्न, मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आप उसको इस पे दे रहे हो, तो इतना तो आपको लॉस हो गया। दिस इज द लॉस दैट लेंडर इज विलिंग टू बियर, ठीक है, वो मार्केट रेट से कम ले रहा है, ये नेगेटिव हो गया ये अमाउंट, बट वो इनकम कितनी कम दे रहा है, BC is the amount of wages which he is paying lesser than the competitive W. तो BC is the amount of profit that he is able to gain because of underpayment of labor. तो अगर BC में से if you minus BC minus AB तो आपके पास बचा तो AC यहाँ पर भी बचा था और यहाँ पर भी उतना ही बचा है AC ऑलमोस्ट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द सेकेंड मॉडल है। सेकेंड मॉडल समझ में आया, ठीक है। अब
व्हाट वी आर सेइंग इज, अब देखो ना, हमने बोथ इन बोथ केसेस द नेट रिटर्न टू बिरजू गिवन बाय द सेगमेंट इज AC. अब लेट्स अंडरस्टैंड द अब नेक्स्ट वो देखते हैं. अब अंका के पास ऑप्शन है कि वो क्या चूज़ करेगी. अंकाज मेथड ऑफ मेकिंग लोन चॉइसेस, अंका प्रेफरेंसेस ओवर स्लैक एंड पीक पीरियड कंजम्पशन. हर प्रेफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय इंडिफरेंस कर्व्स. तो वो इंडिफरेंस कर्व अभी मैं समझाता हूँ उसके क्या है. हर बजट लाइन, what is the Anka's budget line under the contract W star I star. Now to find this, determine the intercept W star. अगर ये W है तो आपको W star पता चलना चाहिए पहली बात तो. अब W star determine the intercept W star and then draw a slope of the line downwards representing a trade off between the slack and the peak period consumption. तो वो स्लैक में कितना कंजम्पशन करना चाहती है और पीक पीरियड में कितना कंजम्पशन करना चाहती है. अगर वो स्लैक में कम कंजम्पशन करना चाहती है तो वो ये है, और पीक पीरियड में कंजम्पशन ज़्यादा करना चाहती है तो ये. तो ये जो इनडिफरेंस कर्व है ये बेसिकली वो बता रही है कि आप स्लैक पीरियड में कितना कंज्यूम करना चाहते हो और पीक पीरियड में कितना करना चाहते हो. जितना आप इस इनडिफरेंस कर्व के नीचे आते रहोगे आप उतना ज़्यादा स्लैक पीरियड में कंज्यूम करना चाह रहे हो. जितना आप ऊपर आ रहे हो उतना मतलब आप स्लैक पीरियड में कम कंज्यूम करना चाह रहे हो. दैट मीन्स आप पीक पीरियड में ज़्यादा कंज्यूम करना चाह रहे हो. एंड दिस इज हाउ मच आर यू गोइंग टू, ठीक है अभी मैं बनाता हूँ, वापस बनाता हूँ, रुक जाओ. देन अब उसके बाद उसको पैसा कितना मिल रहा है. दिस लाइन इज प्रिसाइसली W इंटू सी. ये जो W इंटू सी वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो उसकी बेसिकली बोरो करके उसने कितना पैसा उठाया वो वाली लाइन है. ठीक है. तो ये जो लाइन आपको बता रही है, ये आपको बता रही है कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने ये पैसा बोरो किया ना, आप जितना पैसा बोरो करोगे वही तो आपकी बजट लाइन क्या है. बजट लाइन इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर बोरोइंग with the rate of interest. You are borrowing L amount of money with 1 plus I star amount of interest. तो वो आपकी हो गई बजट लाइन की वो इक्वेशन. और ये आप इतना कंज्यूम करना चाहते हो. अगर आपकी इस बजट लाइन के ऊपर आपका ये टेंजेंसी है तो दैट मीन्स यू वांट टू कंज्यूम दिस मच अमाउंट ऑफ मनी. ठीक है. और ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो नाउ लेट्स लुक एट द वर्टिकल डिफरेंस. आप वो किस पॉइंट पे आप टेंजेंसी मिलेगी, आपको वो मिलेगा द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन द इंडिफरेंस कर्व U एंड द लाइन मार्क्ड इज मैक्सिमाइज एंड दिस इज गिवन बाय पॉइंट C' एट विच दिस इज टेंजेंट एंड इंडिफरेंस कर्व इज पैरेलल. तो आप अगर देखोगे तो आप कहोगे कि अगर ये कौन सी आ गई वेज रेट, किसको बता रहा था. हाँ. नाउ what does Birju want? Now can Birju, so the point here is Anka maximizes the utility at point C which places her on the indifference curve on U and Birju receives AC profit from this. So हमने ये देख लिया कि अगर ये वाला सिचुएशन है तो वो इस पॉइंट पे वो कंज्यूम करेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो इंटरेस्ट रेट जो होगा वो ये वाला दे रहा होगा. तो इस केस के अंदर AC जो बिरजू को प्रॉफिट हो रहा होगा वो ये प्रॉफिट हो रहा होगा. अब लेट अस सी दैट व्हाट विल हैपन. नाउ let us see, can Birju devise an alternative contract that places Anka on the same indifference curve. हम अंका को सेम इंडिफरेंस कर्व पे रखना चाहते हैं बट उससे प्रॉफिट और ज़्यादा लेना चाहते हैं. उसके लिए वो क्या करेगा, उसके लिए वो कुछ ऐसा डिवाइस करना चाहेगा जिससे क्या होगा कि वो इस वाली वेज रेट, उसकी वेज रेट कम कर देगा वो. ठीक है. वो कंज्यूम ज़्यादा करेगा, उसको कहेगा तू ज़्यादा कंज्यूम कर, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे मुझसे कम ले ले बट अब मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए. अब दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी but gives Birju a higher payoff. If he can, then we can conclude that the contract depicted in figure 14.4 वाला जो फिगर है is not the optimal from the point of view of Birju the lender. ये वाला जो फिगर है ये ऑप्टिमल नहीं है. ठीक है.
वी आर गोइंग टू फाइंड अनदर कॉन्ट्रैक्ट. अब वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? नाउ इफ़ यू सी दिस, लुक एट द पॉइंट एट विच. अब बिरजू कैसे मैक्सिमाइज करेगा? बिरजू मैक्सिमाइज करना चाहता है इस लाइन यू और इसके बीच में अपना डिफरेंस मैक्सिमाइज करना चाहता है. यही मैक्सिमाइज करना चाहता है कि मेरा मुझे इतना, मुझे ये रिटर्न मिलना चाहिए और ये उसकी यूटिलिटी है. तो इसके साथ जो इस लाइन के जो टेंजेंट वाली लाइन है वो बनाने की कोशिश करेगा और उस पर वो उतना अमाउंट ऑफ लोन देना चाहेगा. ठीक है, लेट्स सी दिस. द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन द इंडिफरेंस कर्व u and the tangent is maximized. This is given by point c hat at which it is tangent to the indifference curve and parallel to the line this. Now if Birju can get Anka to choose this point as her consumption bundle, provided he is lowered the wage rate to w dash but charge the exact same rate of interest as the opportunity cost, which is I, in this case Birju's return will be a dash c dash, a hat c dash, which is higher than ac. Therefore we can conclude जो w स्टार i स्टार था वो ऑप्टिमल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वो एक नया रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा. वो सेकंड वाला जो केस है वो लेगा जिसमें वो इंटरेस्ट रेट तो उसको कम दे देगा बट वेजेस जो होगी उसको और रिड्यूस कर देगा और उससे मैक्सिमल डिग्री ऑफ सरप्लस एक्सट्रैक्ट कर लेगा. एंड दिस इज व्हाट हैपन्स इन द इंटरलिंकेज मार्केट वेयर नो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट इज चार्ज ऑन द लोन. वो कॉम्पिटिटिव रेट पे दिया बट द पेमेंट्स आर मेड इन लेबर यूनिट्स और उससे लेबर के फॉर्म में उसको एक्सप्लॉइट कर लिया. दिस इज़ व्हाट दिस एंटायर मॉडल सेज. ये मॉडल समझ में आया कि नहीं आया? एंड दिस इज बेसिकली कि अंका की जो अंका के ऊपर जो है एक लमसम टैक्स लगा दिया उसके प्रॉफिट्स के ऊपर ही, उसके लेबर के ऊपर ही. वो ये मॉडल है. ठीक है. एंड लास्ट मॉडल रीपेमेंट इन आउटपुट. रीपेमेंट इन आउटपुट का जो मॉडल है इस मॉडल का इंडेक्स रेफरेंस को, ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये ओके गाइज, ये वाला लास्ट वाला आई हैव मार्क्ड इट. यू कैन डू इट ऑन योर ओन. आई विल जस्ट so tired. I will just explain you this. एक बार लास्ट वाला मैंने मार्क कर दिया, प्लीज़ रीड इट. बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. इट विल टेक यू 15-20 मिनट्स. मैं इसको समझा देता हूँ आपको. देखो, हमने 2 मॉडल लिए थे. ये मॉडल क्या लिया था कि इंटरेस्ट कि वो कैश के फॉर्म में भी चार्ज करेगा और w स्टार चार्ज करेगा. हमने ये मॉडल लिया था. दूसरा हमने क्या मॉडल लिया था? तो इस केस में हमारा मॉडल क्या था? w स्टार i स्टार. ये वाला मॉडल था. ये था w स्टार विच इज़ सम w स्टार विच इज़ लेस देन w बट i वॉज इक्वल टू, i वॉज एक्चुअली, इसमें हमने कहा था कि i स्टार विल बी लेस देन i. ठीक है. इसमें वो सारा का सारा पैसा जो है वो उससे ले रहा था इन फॉर्म ऑफ लेबर यूनिट्स. ठीक है. उसी को हम जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, आपने पहले ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट था. ठीक है. और ये जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आप तब चूज़ करते हो जब आप उससे फर्स्ट वाले मॉडल के अंदर, जहाँ आपका i स्टार इज़ ग्रेटर देन i एंड w स्टार इज़ लेस देन w. पहला वाला मॉडल याद है सबको? यही था ना कि आप उससे कैश पेमेंट भी ले रहे हो और उससे आप वेजेस में भी पैसा ले रहे हो. तो आप उस बंदे को जब आपने उसको लोन दिया तो आप पहले तो उसको वेजेस कम दे रहे हो. लोन का अमाउंट है वो क्या है? वो ये वाली लाइन है. इसी पे तो आपने लोन दिया है ना उसे. अपना उसकी बजट लाइन क्या होगी? जो बंदा बोरो कर रहा है उसकी बजट लाइन क्या होगी? यही बजट लाइन होगी ना उसकी. कितना आप उसको लोन दे रहे हो और कितनी आप उसके वेजेस दे रहे हो. अब उसके अलावा उसका एक इंडिफरेंस कर्व भी तो होगा. व्हाट इज़ दैट इंडिफरेंस कर्व टेलिंग यू? वो कह रहा है पीक सीजन और स्लैक सीजन. वेजेस तो उसको पीक सीजन में ही मिलती है ना. स्लैक सीजन में तो काम ही नहीं है. स्लैक सीजन में क्या है? स्लैक सीजन में तो काम ही नहीं है, कोई काम नहीं है. पीक सीजन में उसको वेजेस मिल जाती हैं. अब वो पीक सीजन में उसको कितनी वेजेस दे रहा है? वो w स्टार वेजेस दे रहा है. और उसको स्लैक सीजन के लिए क्या कर रहा है? स्लैक सीजन के लिए उसको इतनी उसको इनकम दे रहा है. इस बंदे की इनकम कितनी होगी? इस बंदे की इनकम होगी ऐसा कुछ करके, यही तो बजट लाइन बनी.
ये बजट लाइन किस तरीके से बनेगी, डब्ल्यू स्टार इन द पीरियड ऑफ, डब्ल्यू स्टार उसको पैसे मिल गए जब पीक सीज़न है, और जब आपका जो दूसरा वाला सीज़न है तो उसको लोन मिल गया और वो उसको लोन का इंटरेस्ट ये आई स्टार वाला मिल गया। अब इस बंदे को चूज़ करना है कि वो कितना कंज्यूम करना चाहता है। अब वो कंज्यूम करना चाहेगा, अब वो कैसे कंज्यूम करना चाहेगा, वो कंज्यूम करना चाहेगा दिस कंजम्पशन, दिस यूटिलिटी फंक्शन इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मच दिस पर्सन वांट्स टू कंज्यूम इन द पीक सीजन वर्सेस हाउ मच दिस पर्सन वांट्स टू कंज्यूम इन द स्लैक सीजन। हो सकता है अगर वो यहाँ इस वाले पॉइंट पे हो तो उसका मतलब क्या है कि वो स्लैक में कम करना चाहता है और पीक में ज़्यादा करना चाहता है। अगर वो इस पॉइंट पे है तो वो स्लैक में और ज़्यादा करना चाह रहा है, पीक में कम करना चाह रहा है। इस पॉइंट पे है तो वो स्लैक में ज़्यादा करना चाह रहा है और पीक में कम करना चाह रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ जिन लोगों को लोग नहीं क्लियर हुआ था। इनडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन क्लियर होनी चाहिए पहली चीज़ तो, ठीक है। अगर आपको इनडिफरेंस कर्व और बजट लाइन क्लियर हुई तब मैं आगे चलता हूँ। अब हमने आगे क्या किया, जहाँ पर टेंजेंसी होगी वहीं पे तो कंजम्पशन करेगा। दैट मीन्स वो इतना कंज्यूम कर रहा है स्लैक सीजन के अंदर, इतना वो कंज्यूम करेगा बेसिकली, उसकी इतनी क्या कहते हैं इतनी उसकी पॉसिबली कंजम्पशन रहेगी डिफरेंट इन दी पीक पीरियड। पीक पीरियड में उसकी इतनी कंजम्पशन रहेगी, स्लैक पीरियड में उसकी इतनी कंजम्पशन हुई, और वो इतना इतना अमाउंट ऑफ लोन ले लेगा एट दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो बंदा है जिसने लोन दिया उसको कितना प्रॉफिट होगा, ये उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का था, और ये उतना इतना उसने लोन दिया और इतना बेसिकली इतना तो उसने लोन में कमा लिया, जो हमने पिछले वाला डायग्राम भी करा था, पिछले वाले डायग्राम को ही एक्सपैंडेड फॉर्म में करा है। ये उसने लोन के टर्म्स में पैसा कमा लिया, और ये उसने बीसी जो कमा लिया उसने इन टर्म्स ऑफ पैसा कमा लिया जब उसने वेज रेट कम दिया, क्योंकि पीक सीजन में इतनी वेज रेट होनी चाहिए, उसने कम वेज रेट दी। ये समझ में आया कि AC विल बी द अमाउंट विच इज अर्नड बाय बिरजू। यहाँ पर उसने AB प्लस BC नहीं करा, यहाँ पर सीधा कर दिया। यहाँ तक समझ में आया? यस नो यस नो यस नो यस नो यस नो यस नो। अच्छा नाउ अब उसके बाद नाउ कम्स, अब ये बंदा क्या चाहता है, ये कहता है यार मैं तो खुश नहीं हूँ, मुझे इस फार्मर से और एक्सट्रैक्ट करना है। उसको सेम यूटिलिटी फंक्शन पे रखते हुए कैन आई एक्सट्रैक्ट मोर आउट ऑफ हिम। अब उसके लिए डिवाइस करता है क्या, इसको कहता है यार तू कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा ले ले। कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बंदा क्या करेगा, ये कहेगा कि यार मैं काम करता हूँ ज़्यादा कंजम्पशन कर लेता हूँ स्लैक पीरियड में। उसके लिए तो क्या हुआ, उसकी बजट लाइन पहले ऐसे थी, उसकी बजट लाइन अब ऐसे हो गई, प्राइसेस कम हो गए ना स्लैक कंजम्पशन के। अब समझ में आया कि प्राइसेस जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो गया स्लैक कंजम्पशन के लिए तो प्राइसेस कम हो गए। ये समझ में आया? बजट लाइन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई। अगर आई जो हो जाता है, अगर इफ़ दिस इज़ आई स्टार एंड इफ़ सॉरी इफ़ ये आई है, और ये जो आई ये वाली इस लाइन की जो इक्वेशन है इज़ L इंटू 1+i है, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, इसको इसी के पैरेलल वाली उसमें ले गया और यहाँ तक ले गया, ठीक है। अब यहाँ पर ले जाने का फ़ायदा क्या हुआ, अब उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया। यहाँ से यहाँ तक का तो उसने कहा कि मैंने चलो मतलब ये जो A' टू C' वाला है, दिस इज़ A हैड टू C' इज़ ग्रेटर दैन A टू C। अब इसने ये डिवाइस कैसे किया, इसने इंटरेस्ट रेट मार्केट से वही चार्ज किया जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला था, बट उसको जो वेजेस दी वो वेजेस इतनी ज़्यादा कम दे दी, उसको वेजेस इतनी ज़्यादा कम दे दी कि वो बेचारा वेजेस से पैसे दे रहा था अपने रादर देन इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट से उससे तो उतना ही लिया, बट उसका वेजेस से बहुत सारा अमाउंट ले लिया, विच कैन बी सेड टू बी एज वेजेस के ऊपर लंप सम टैक्स लगा दिया उसकी, और उससे इंटरेस्ट रेट जो है वो मार्केट डिटरमिन ही लिया। एंड दिस इज हाउ यू कंबाइन दीज टू मार्केट्स। यहाँ पर आपने दोनों मार्केट को एक साथ कंबाइन करके उस बेचारे को एक्सट्रैक्ट कर लिया। एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटरलिंक्ड क्रेडिट मार्केट। समझ में आया कि नहीं आया? हो ठीक है। नाउ अब मेरा गला साथ देना बंद हो गया है। कैन यू रीड दिस लास्ट यूनिट फोक्स? कैन यू रीड? इतना बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। उसके ऊपर ही टैक्स लगा रहे हो, ठीक है, एक्चुअल टैक्स लगा रहे हो, बस इसको पढ़ लेना। मैंने जितना हाईलाइट करा हुआ है वही सेम चीज़ है कि आप उससे
अब आप उससे प्रॉफिट ले रहे हो इंस्टेड ऑफ उससे उसी चीज़ के लिए आप उससे प्रॉफिट ले रहे हो रादर दैन अपने आउटपुट का शेयर ले रहे हो रादर दैन उससे वेजेस का शेयर लेना. जस्ट रीड दैट. यहाँ तक भी कर लोगे तो काफ़ी है. यू विल बी एबल टू आंसर क्वेश्चंस. इफ़ यू वांट टू रीड, यहाँ पर तो ये वियतनाम तो छोड़ दो बिल्कुल. इफ़ यू वांट टू रीड कॉस्ट ऑफ मॉनिटरिंग कोल्यूजन वगैरह जल्दी जल्दी अगर इफ़ यू कैन रीड इट देन गुड. एंड माइक्रो फाइनेंस के एग्जांपल्स हैं कि कैसे कैसे फाइनेंसेस चल रहे हैं मार्केट के अंदर. पीयर मॉनिटरिंग रहती है, पोटेंशियल ड्रॉबैक्स रहते हैं, वायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस. ग्रामीण बैंक के सारे इसने एग्जांपल दिए हुए हैं कैसे वर्क करता है. उसी के लिए ग्रामीण बैंक के जो फाउंडर थे उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इकोनॉमिक्स का. ठीक है, एक्चुअली उनको पीस का मिला था रादर देन इकोनॉमिक्स का. सो दिस इज़ द इंटायर चैप्टर. एंड जो मैंने आपको ऊपर वाले केसेस बताए प्रोबेबिलिटी के साथ से, उसी के ऊपर आपके न्यूमेरिकल है. जस्ट ट्राई टू सॉल्व दैट थ्रू दैट मॉडल एंड यू विल बी एबल टू आंसर इट. अगर नहीं होता तो ग्रुप पे डाल दो, इंटर कॉलेज कोऑर्डिनेशन ग्रुप पे डाल दो. आई एम श्योर समवन विल बी एबल टू सॉल्व इट. ठीक है. Anything else? Let me just and what I'm going to do, one more thing folks, one more thing. I have a request, small request. Now just one small request आपका yeah. So one small request folks, I'm going to circulate a Google form for all of you. उसके अंदर the sign up is there for the 6th का हमारा जो session है जिसके अंदर हम we'll also talk about that 4 year वाला, क्योंकि कई colleges में I think वो 4 year वाला information लेना शुरू कर दिया है. So I'll probably give you a couple of tips how you can go about that. And then we are also going to have a major discussion for UPSC and the competitive prep. And most importantly, the group that the information that I am circulating उसके अंदर there is a form for testimonial. तो उसमें just in case if you have liked some of my lectures, if you have attended some of these lectures, you can write a small testimonial with your with your picture, because I am building a website and that website will be one stop shop for everyone who is going to be your junior, because उसमें वहाँ पर सारे tenures हैं, सारे courses हैं, everything is there on that website. You don't need to go anywhere else except for pinkprofessor.org. So but for that I need peer reviews and nothing better than your reviews. आप लोग हैं, आपके seniors हैं. So I'll be more than happy if you can if some of you can give me peer reviews. I know I can get some from Gargi, I can get a lot from Mata Sundari now, but people who don't know me in general, if you're happy with what I do, please give that. So thank you very much folks, all the best for your exam. And do let me know, please put it on the group जो भी numerical वगैरह का issue है. And do let me know how the paper went by, and then we'll take up a couple of topics for money and banking. Okay guys, all the best, bye, good night.